Hey everyone, I hope to be joined by Sadaf Heather, who's going to be my co-host, and hopefully Wahaj, Maya, and Talha Chahur will hopefully join us. I'm just waiting for everyone else. Sadaf is here, yay! And I am sending her an invite to co-host. Please remember that we're going to try and sorry, ignore my kid in the background. We are going to try and take your questions, but this space is primarily for uh, as soon as the cast and the crew join in. So we're going to try and focus on their experiences and their sort of the journey that they took for Jo Bichar Gaye. So we're going to try and take your questions later. We're also going to have a few back and forth between me and Sadaf and some of the other regular commentators on Jo Bichar Gaye. Sadaf, Assalamu alaikum. Walaikum salam, Mahwash. Assalamu alaikum to all our listeners. So, thank you for joining us. As Mahwash says, we're going to be talking about Jo Bichar Gaye. And hopefully, and this is fingers crossed because in logon ke schedules, kuch is type ke we hope to have some of our actors who took part in Jo Bichar Gaye on. So, that is a big fingers crossed. So, hopefully, we'll get to talk to them. But I think the most important part is we talk with each other and we discuss the impact of this show and how different it was at an artistic level. Yeah, so and I think some of the points that you raised about the show, the humanity and the appeal to humanity, and of course now we are living in such very difficult times, with the conflicts around the world. I think it's such an important point to kind of Talha Chahur is here. I'm just inviting him to speak. I think it's so important to kind of remember the humanity and the importance of peace and brotherhood and reducing the conflict when it comes to differences. So I think that's what do you think? Do you think that that's, I mean, you've actually mentioned this point, so I think that's a wonderful takeaway from the show. Well, And just I one think, second, go ahead. Talha, if you can just hear me, please accept the invitation to speak, and please unmute your mic and go ahead. I've sent you an invitation to speak, so if you can hear me, please accept the invitation. Ji Sadaf, so sorry. Nahi, Talha, can you hear us? Sadaf, Okay. he's not come on the speaker yet, so I've offered Yeah. him the speaker position, but Acha. he needs to accept that. Yeah. 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 I mean, sometimes in logon ka connection ka issues hote hai, I know. No, I think humanity is the main cause here. I think हम लोग जो है ना ये जो jingoism and Hurefra side वाला issue जो है ना leave that. जी I think the सदफ most तलहा आ important गए part. हैं. Okay, जी good. अस्सलाम वालेकुम Go for it. जी अस्सलाम वालेकुम आवाज़ जी अस्सलाम एंड वालेकुम सदर जी तलहा. कैसे हैं आप Assalamu alaikum, Talha. सर हम बिल्कुल ठीक हैं. ग्रेट तलहा आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ऑल गुड सब बेहतरीन आप ठीक हैं बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का. नहीं 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 आपका I mean, शुक्रिया कि आप लोगों ने इनवाइट किया Talha, thank you so नहीं हम much. Thank you so much for joining us. मैंने और माविश ने decide किया है कि we will only ask you sensible questions. हमने fan girls बिल्कुल नहीं बनना. हमने promise किया हुआ है. बहुत मुश्किल है मेरे लिए, बहुत मुश्किल है मेरे लिए. तलहा, you have blown me away with your presence and I'm like, I'm such a fangirl. Sadaf, stop me. नहीं Like, I mean, stop me before I say something stupid. Please stop me. नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं. We are so impressed. I loved the freshness that you brought to that role. मुझे आप बताएं, and this is our sensible questions now. अब वो fangirling बस, right? Talha, please हमें बताएं how you prepped for this role because you were so authentic. आपने आपके बात करने का अंदाज, I mean, you didn't look like a guy from this century. Like it was very authentic. How did you prep for it? सदर जी थोड़ी आपका सवाल पूरा समझ नहीं आया दोबारा काइंडली आप बोलेंगे I'm saying, how did you prep for your role? How did you enter into the voice and thinking of Captain Farah? ओके 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 जब मैंने स्क्रिप्ट को पढ़ना शुरू किया कैप्टन फारूक साहब के कैरेक्टर को साथ में मेरी जब उनसे मुलाकातें हुई तो फिर कुछ इसी तरह मैं
सोचता था कि उस टाइम पे क्या गुजरा होगा, क्या उनकी क्या क्या फीलिंग होगी उन पे कि आप देखें एक जगह पे मुल्क जा रहा है, मुल्क टूट रहा है और उन्हें पता है कि मुल्क टूट जाना है, लेकिन वो एंड तक कोशिश करें। आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? दया? जी, लाउड एंड क्लियर, लाउड एंड क्लियर। ओके 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 ओके। तो वो जो फील थी कि पता भी है कि मुल्क ने टूट जाना है, हालात ऐसे बन चुके हैं और फिर भी कोशिश एंड तक, फिर वो सोनिया के साथ जो उनकी मोहब्बत थी और वो जो केमिस्ट्री थी, वो चीज़ें थी, वो उन सब चीज़ों को जब मैंने सोचा, फील किया, तो फिर इसकी करेक्टराइजेशन की। और जब थिएटर में हमें सिखाया जाता था वर्कशॉप्स में कि करेक्टराइजेशन किस तरह करनी है, तो फिर मैं हमेशा सोचता था कि अगर वो आर्मी वाले एक वो फौजी होंगे तो वो किस तरह वो डिफरेंट करेंगे, वो ये ना लगे कि वो सेम वही चीज़ एक चल रही है जो ऑलरेडी चल रही होती है। तो मैंने वो बस कोशिश की डिफरेंट करने की। सो ऑब्जर्व करता था लोगों को, और जब मैं सेट पे भी होता था, जब मैं कैंटोनमेंट एरिया में भी होता था इस दौरान, शूट के दौरान, सो अल्हम्दुलिल्लाह वो सब चीज़ें करके फिर मैंने सोचा कि कुछ अपना एक डिफरेंट होना चाहिए। सो वो लोगों ने बड़ा पसंद किया, अल्लाह ने करम किया जी। I want to ask again, Talha, there is a kind of naivety to Captain Farrak's attitude. वो थोड़े से मासूम से हैं. And I think nowadays वो हम लोग, what do you say, Mavish, हम लोग थोड़े से cynical हैं about जी patriotism and that period of history. लेकिन you managed to keep it very, जैसे थोड़ा सा naive और जैसे वो भोला भाला पता है ना, वो वो belief. वो मैंने इस तरह फील किया कि एक जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी थी तो उसके अंदर मुझे पता चला था कि मिडिल चाइल्ड थे, एक्सप्रेसिव नहीं थे। उन्होंने अपनी अपनी माँ को मतलब कि उनकी वालिदा ने एक बाप का भी किरदार अदा किया और एक माँ का भी किरदार अदा किया, क्योंकि उनके वालिद शहीद हो गए थे। और उन्होंने वो चीज़ें देखी, वो एहसास कमतरी देखी। उन्होंने कभी वो एक्सप्रेस नहीं किया कि अगर मुझे, वो होता है ना कि मिडिल चाइल्ड वाला, कि अगर उसे कुछ चीज़ चाहिए भी होती है फिर भी वो चीज़ें नहीं मांगते, और वो हमेशा से ही इस तरह के। तो फिर उस तरीके से जब मैंने वो चीज़ें सोची, क्योंकि ये स्क्रिप्ट में तो था कि मतलब कि उनकी इस तरह ये उनकी ज़िंदगी गुजरी है और उनकी अम्मी ने बड़ी स्ट्रगल की है। तो जब मैंने उन चीज़ों को फील किया तो फिर ऑटोमेटिकली वो सारी चीज़ें खुल के निकली, अल्हम्दुलिल्लाह। That's so wonderful that you actually went into the history of the character. I think how many people do that, Sadaf? I don't think a lot of like people do it. I'm not saying people don't do it. I'm saying that very good actors do it. My question to you, Talha, is जी how do you feel now? अब आपको कैसा लगता है? ड्रामा खत्म हो गया है, आपने फीडबैक देखा, जब आपने ये शुरू किया था ड्रामा, जब आप प्रिपेयर कर रहे थे, उस जी वक्त से लेके अब तक आपकी जो एक अपनी एज अ पर्सन भी आपकी जो जर्नी रही है और एज एन एक्टर भी, जब आपने इस प्रोजेक्ट को आप देखते हैं, अब जी आपके सामने मतलब एक तकरीबन हम कहते हैं ना कि जी अरे पहले खत्म होने दें फिर हम देखेंगे कैसा होता है, जी लोग कैसा फील करते हैं, अब आप जी कैसा फील कर रहे हैं और आपके दिल में और आपके अतराफ में क्या तब्दीलियां वाकई हुई हैं और अब आप कैसे महसूस करते हैं और कैसे देखते हैं इस पूरे प्रोजेक्ट और जर्नी को? मैं जी मवाज जी, जब मैं ये कर रहा था, बट जब मैंने स्टार्ट किया था, शूट स्टार्ट हो चुका था इसका, तो मेरे ज़हन में जब भी मैं अपनी थिएटर की ज़िंदगी में भी जब मैंने जो काम किया थोड़ा बहुत, वो जब मैं करता था तो मेरे ज़हन में होता था कि मैंने अपना बेस्ट देना है, कोशिश करनी है, मेहनत करनी है। और मैं वो 3 फ़ॉर्मूला है मेरे, वो मैं उनके ऊपर चलता हूँ कि आप मेहनत करें, आप स्ट्रॉन्ग फेथ रखें अल्लाह पे, अपने आप पे फेथ रखें, देन आपके अम्मा अब्बा की दुआ आपके साथ ज़रूरी है, देन कोई भी आपको बीट नहीं कर सकता किसी भी फील्ड में। तो मैं उस चीज़ पे बड़ा कायल हूँ। जब मैं मेहनत कर रहा था तो मैं बस यही था कि मैं अपनी कोशिश करूँ पूरी, कि कसर ना छोड़ूँ मैं। तो फिर मैंने बाकी चीज़ें सब खुदा पे फेंकी थी, और मैंने सोचा नहीं था ये कि लोग इतना ज़्यादा प्यार मिलेगा, मतलब कि था कि एक अच्छा रिस्पांस आएगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा रिस्पांस आया। और अब मैं कोई चीज़ नहीं हूँ, आई एम नथिंग। और मुझे ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने देखें कि दिलीप साहब से किसी ने मिला दिया, और ये किसी ने ये सदफ है, ये सदफ है, वो यहीं बैठी है, यहीं बैठी है।
किसी ने वहीद मुराद साहब से मिला दिया। मैं कहता हूँ कि मैं उनके मैं आई एम नथिंग। तो मतलब ये कि मैंने सोचा नहीं था कि इतना अच्छा रिस्पांस आएगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को बड़ा पसंद आया और मेरा कैरेक्टर भी लोगों को बड़ा पसंद आया। तलहा, जिस हम तरह नहीं मानते कि आप नोबडी हैं, ओके? हम नहीं नहीं, मानेंगे। और आप ये बता दें कि आपको कितनी फिल्में और ड्रामे अब तक ऑफर हो चुके हैं, ये भी बता दें जल्दी से। मुझे काफी हुए ड्रामास, ये मुझे देखो फिर। ये बात काफी है। हुए, काफी हुए। और बस अभी पढ़ रहा हूँ, कुछ चल रहा है सिलसिला, अभी पढ़ाई चल रही है, अभी कुछ फाइनल नहीं किया मैंने। जी Sadaf, over to you, your question, and Yeah, I'll take sure. in the next question. I will say why I said Dilip Kumar, because that kind of sensitive acting is rare, and I was really kind of like impressed with both you and Wahaj, and of course Maya. The amount of chemistry you guys had as a team. I जी remember there was this beautiful picture. आप दोनों माया की तरफ देख रहे हैं, तो मैंने कहा वो चॉकलेट केक या पैकेट ऑफ चिप्स, लेकिन आप दोनों इतने गौर से उसको देख रहे हैं। I was jealous, I have to say, because I mean, well, jokes aside, you guys had a lot of intensity. Now, I would like to know, who was Sonia really interested in? आप रियलिटी की बात करना चाह रही हैं? Yes. देखिए, दोनों ही बता दें, रियलिटी भी बता दें और स्क्रीन वाला भी बता दें। मेरा रियलिटी तो ये थी, रियल में जो स्टोरी लिखी है और जो कर्नल फारूक साहब की जुबानी है, वो रूमी जो है वो फिक्शनल कैरेक्टर है जो हाइसम भाई ने बनाए, हाइसम भाई ने उसके लिए। और जो रियलिटी ये थी कि सोनिया और फारूक की बड़े हैवी किस्म के वो दीवाने थे, और एंड तक वो अपनी मोहब्बत के लिए जंग करते रहे हैं। और ये अगर आप जो बिछड़ के बुक पढ़ेंगे तो आपको उसके अंदर मिलेगा। So Sonia was very much interested in obviously फर्क, क्योंकि रूबी तो है जी नहीं जी था। जी जी Yeah. जी जी फारूक और बहुत ज्यादा मतलब कि उनकी बहुत ज्यादा क्लोजनेस थी, बॉन्डिंग बहुत ज्यादा थी। लेकिन वो फिर आपको पता है कि फिर अगर आप उन चीजों को ड्रामाई अंदाज देना चाहें तो उस तरीके से आप नहीं दे सकते। तो हेड्स ऑफ टू कैप्टन ऑफ द शिप हाइसम भाई, जिन्होंने जिस तरीके से माशाल्लाह वो लेके चले हैं, और वो जो ट्रायो उन्होंने दिखाया है, और अवाम को अभी तक वो कंफ्यूज एंड तक रखा है कि सोनिया फारूक को मिलेगी या रूमी को मिलेगी, लेकिन सारा क्रेडिट हाइसम भाई को जाता है। Yeah, आप ना excuse me, tell me about Haisam. वो बड़े देर के बाद थोड़ी सी हाइएटस पे गए थे, अब वो वापस आए हैं। तो यू नो, आई थिंक दिस इज योर, आपका दूसरा प्रोजेक्ट है, तो आते ही साथ हाइसम टक्कर गए, तो कैसा लगा आपको हाँ, उनके वो डायरेक्शन का स्टाइल? मैं आपको सच बताऊं तो हाइसम भाई मुझे एज अ टू बी ऑनेस्ट छोटा भाई लेके चले हैं। मतलब उन्होंने मुझे वो फील ही नहीं कराया कि एक डायरेक्टर और एक एक्टर का रिश्ता तो होता ही होता है, लेकिन वो मुझे एज अ एक छोटा भाई की तरह वो लेके चले हैं। जिस तरह उन्होंने मुझे चीजें समझाई हैं, जिस तरह हम डिस्कशंस करते थे, और उन्होंने मुझे मतलब कि 24 आवर्स उन्होंने सर्विस दी है कि जब मर्जी जो मर्जी पूछें, जिस तरह का मर्जी सवाल करें। और उन्होंने गाइड किया जिस तरीके से, इवन कि सिर्फ मेरे कैरेक्टर पे काम नहीं किया, उन्होंने हर कैरेक्टर पे काम किया है। इवन कि जिसकी लोग होता है कि लोग लीड पे काम कर देते हैं मेन, और नीचे वाले कैरेक्टर्स पे और उस तरह नहीं देखा जाता, लेकिन आइसम भाई ने एक एक कैरेक्टर पे काम किया है। जिसकी दो दो लाइनें थी उसके ऊपर भी काम किया है। और आप देखें कि अल्लाह ने ऐसी इज्जत दी इस प्रोजेक्ट को कि जिसकी दो दो लाइनें भी आई हैं, वो भी उसको भी लोगों ने, वो भी रजिस्टर हुआ है काम उसका। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। सदफ, जी can I go ahead? Go ahead. Yeah, okay. So तलहा, मैं जो सवाल पूछना चाह रही थी, आखिरी एपिसोड के हवाले से पूछना चाह रही थी कि बहुत ही हार्ट जी ब्रेकिंग एपिसोड थी। जी एंड जी आप जिस तरह की आपने बात कही, मेरे ख्याल से आप सोर्स मटेरियल और उसके अंदर पूरा डीपली जाके आपने पढ़ा। तो आखिरी एपिसोड एज अ पाकिस्तानी या एज एन एक्टर,
आपके अंदर जो फीलिंग्स थे वो क्या थे? एक तो ये बात है पूछनी थी मुझे, और दूसरी मुझे ये पूछनी थी कि ऐसा क्यों हमें फिर लगता है कि इस तरह के प्रोजेक्ट्स, और ये सवाल वैसे तो एक जेनेरिक सा सवाल है जो मैं सबसे करती हूँ, लेकिन मैं जी आपका ओपिनियन लेना चाहती हूँ कि जी आपको क्या लगता है कि ऐसे प्रोजेक्ट्स क्यों नहीं होते? माशाल्लाह यू वर लकी कि आपके पास हाइसम मौजूद थे, लेकिन ये कि हाइसम ने भी इतना लंबा हाइएटस लिया, लाइक सदफ सेड। सो दोनों सवाल यही हैं कि वो लास्ट एपिसोड में आपके इमोशंस पर्सनल क्या थे, बिकॉज यू डिस्प्लेड इट सो ब्यूटिफुली, दैट हार्ट ब्रेक and that kind of that pain was so visible. और किसी ने आई थिंक मोना है यहाँ पे, वो स्पेस में भी मौजूद है, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की थी कि इट्स अबाउट द सोल्जर्स हु आर अबाउट टू बी टेकन, कि वो प्रिजनर ऑफ वॉर बनने जा रहे थे। तो वो फीलिंग क्या थी, उसके लिए आपने क्या रिसर्च की, और आपको क्या लगता है कि हम ऐसे मजीद ड्रामे बनाने में क्यों हम घबराते हैं या कतराते हैं? मैं देखिए, जब आप किसी चीज को फील करते हैं, जब आप किसी के दर्द को अपना दर्द समझते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो आप में से आपके अंदर वो चीजें झलकने लग जाती हैं। तो मैंने कैप्टन फारूक की जिंदगी जो थी, मैंने उसको जीने की कोशिश की। तो जो वो टाइम था, सरेंडर कर रहे हैं, वो चाहता था मुल्क ना टूटे, वो टूट गया। और सोनिया जिससे वो मोहब्बत करते थे वो ना मिली। वो मतलब कि वो बिछड़ गए। मतलब वो सारी चीजें जब मैं उस समय सोच रहा था, तो मैं टोटली खोया हुआ था उस कैरेक्टर के अंदर, के बस वो जब मैं वो चीज के अंदर अपने ऊपर वो चीज तारी कर लेता हूँ, तो वो ऑटोमेटिकली फिर मैं उस फील के साथ खेलता हूँ। सो वो अल्हम्दुलिल्लाह वो इसी तरह का हुआ, और वो बड़ा एक अच्छा सामने आया। और ऐसे ऐसे आपकी बात बिल्कुल ठीक है, एक तो बहुत कम बनते हैं ऐसे आर्ट ड्रामाज, जो प्योर आर्ट ड्रामाज हैं, हालांकि बनने चाहिए, और उनको पजीराई मिलनी चाहिए, और व्यूअर्स को ऐसी चीजें लाजमी देखनी चाहिए। बस मैं यही मेन कहूँगा। तलहा, मैं आपसे पूछना चाह रही थी, उसमें तलहा कितना था? उस जो कैरेक्टर आपने स्क्रीन में हमें दिखाया, उसमें तलहा कितना था? उसमें तलहा नहीं था। मैं मैं पक्की मैं बात? आपको सच बता रहा हूँ, उसमें तलहा नहीं था। हाउ वुड अल्हम्दुलिल्लाह उसमें और तलहा अच्छा, और तो नहीं फिर था। ये तलहा बता क्या? दें कि मैं तलहा मैं कौन है, फिर ये बता मैं दें कि तलहा मैं कौन है। मैं आपको बताता हूँ कि आप शायद बिलीव ना करें, मैं जब कमरे में बैठा होता था, मैं स्क्रिप्ट पढ़ रहा होता था, तो अल्लाह नोज के मेरे बैठे बैठे आई मीन आंसू निकलना शुरू हो जाते थे। कुछ ऐसे सीन्स मेरी सामने से गुजरते थे, तो मैं डिस्टर्ब हो जाता था, और इस कैरेक्टर ने मुझे बड़ा डिस्टर्ब किया है। और फिर इवन कि मेरा मेरा अपने दोस्तों से मिलने को दिल नहीं करता था। मैं बड़ा ही बस कमरे में ही रह के बन के रह गया। और अभी तक मुझ पे काफी असरात हैं। अभी तक शूट अलग काफी अरसा खत्म हो चुकी है। So Talha, मैं you're कम a very emotional person, है? You're a very sensitive. I think जो आर्टिस्ट लोग होते हैं वो होते ही थोड़े से सेंसिटिव और इमोशनल, क्योंकि वो पिक करते हैं, वो कनेक्ट करते हैं अपने ऑडियंस से थ्रू देयर इमोशंस ना। हेलो, सॉरी, आपकी आवाज कटी है। आवाज आपकी सॉरी, नहीं आ अभी रही। आ रही है तलहा? कैन यू हियर जी, मी? अब आ रही है आपकी आवाज, अब आ रही हाँ, है। मैं सोच रही हूँ कि फिर आप असली तलहा के बारे में बताएं ना। व्हाट आर यू लाइक? आप कैसे हैं? क्योंकि मुझे लगता है आप थोड़े सेंसिटिव हैं। आई थिंक जो आर्टिस्ट लोग होते हैं वो होते भी सेंसिटिव हैं, वरना दे कैन नॉट बी एक्टर्स। मैं सेंसिटिव तो हूँ, लेकिन बस यही है कि मजे में रहने वाला बंदा हूँ, जिंदगी को जीने वाला बंदा हूँ, कि ये जिंदगी दोबारा कभी नहीं मिलेगी, और इसको जी लेना चाहिए, इंजॉय करना चाहिए इंसान को। और यही है जो तलहा है। बाकी कोई यानी कि करेक्टर सेंस हो। ऑफ ह्यूमर, यू हैव अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर एंड यू आर एन ऑप्टिमिस्टिक काइंड ऑफ पर्सन, राइट? नहीं, गुड सेंस ऑफ ह्यूमर इतना अच्छा नहीं है, हल्का फुल्का है, लेकिन मैं उस चीज का कायल हूँ कि बस जिंदगी को जीना चाहिए, टेंशन नहीं लेनी चाहिए, और जो होता है बस अच्छे के लिए होता है, और बस इस चीज का कायल हूँ मैं। तो ये बहुत सिमिलर है मेरे ख्याल से, जो आपने किरदार अदा किया है। वो बेचारा बड़ा सादा सा आदमी है, मोहब्बत हो गई, अब उसकी क्या कसूर है कि जंग के दौरान उससे मोहब्बत हो गई, लव इन द टाइम ऑफ वॉर हो गया, तो इसमें उस बेचारे का क्या कसूर है? डोंट यू थिंक इट्स लाइक सिमिलर? नहीं, नहीं। अच्छा, अच्छा। अब मुझे पता है ना कि तलहा तलहा की क्या
कि तलहा की क्या क्या फीलिंग्स है और तलहा किस तरह एंजॉय करता है, तलहा जिंदगी को किस जाविये से देखता है। तो कैप्टन अच्छा, फारूक टोटली अगर तलहा होता नवंबर दिसंबर 1971 में और उसके सामने सोनिया होती तो तलहा क्या करता? मतलब तलहा बेचारा जंग जंग के लिए निकल जाता। मैं अब ये डिपेंड करता है कैरेक्टर टू कैरेक्टर कि किस तरह की सिचुएशन है। अब हर हम्म बंदे का प्यार करने का तरीका कुछ डिफरेंट ये है। बड़ा वैसे आपने डिप्लोमेटिक जवाब दिया है, बट ठीक हर है, we take your हर point। हर हर आजकल हर ऐसे हर ही है पॉ- डिप्लोमेटिक। हर मैंने हर कहा आजकल के जो आशिक हैं वो वैसे ही है, डिप्लोमेटिक किस्म के। उस जमाने के आशिक थोड़े से वो ना जान देने हाँ, वाले थे। ये बात बड़ी सही है वैसे। दिलीप कुमार हाँ वाली कोई चीज होती तो फिर अलग बात होती है। हाँ। वैसे अभी दैट दिलीप कुमार analogy was not it's not like a offhand comment. मैं आपके मैनरिज्म्स और द वे यू वर स्पीकिंग दैट रिमाइंडेड मी वेरी मच ऑफ हमारे जो सबसे क्लासिक हीरोज हैं, वहीद मुराद और इस टाइप की चीज। बट देखो, व्हाट आर योर मैं फ्यूचर मैं प्रोजेक्ट? मैं बजाते खुद हाँ। ओल्ड स्कूल में जीने वाला बंदा हूँ, बजाते खुद। हम्म, मतलब मुझे वो नई चीजें उस तरीके से अट्रैक्ट नहीं करती जो पुरानी करती हैं मुझे। और रियल लाइफ में बस है कि सादगी पसंद हूँ मैं। बस ओल्ड स्कूल वाली एक है मेरे जहन में काफी चीज, और मुझे कई दफा तो कहते हैं भाई तू क्या बाबे वाली सोच लेके घूम रहा है और फिर रहा है, लेकिन मुझे उसमें रहना अच्छा लगता है। मुझे लगता है आप मुकेश के गाने सुनते होंगे, राइट? मैं मेहदी हसन साहब के भी हेमंत सुनता हूँ। कुमार के गाने भाई। चलो, so how did you find the set, Talha? Because you were working with established actors like Wahaj and Maya. They are superstars, जी and you know, very established. उनकी तो इतनी वो drama side must have been a big change. लेकिन I'm sure they welcomed you. जी बिल्कुल, बहुत ही सपोर्टिव रहे हैं माया और वहाज दोनों ही। उन्होंने मुझे बिल्कुल फील नहीं करवाया कि मैं नया हूँ, और लेकिन वो बड़े सपोर्टिव रहे हैं। बड़ा प्यार दिया उन्होंने और काफ़ी चीज़ें उनसे मैंने सीखी हैं। और इवन के बहुत सपोर्टिव रहे हैं काफ़ी काफ़ी चीज़ों में। बड़े वेलकमिंग रहे हैं वो। इवन के नादिया आपा से सीखने को बहुत कुछ मिला है उनसे। और साजिद शाह साहब से, अदनान भाई से बड़ी अच्छी एक बॉन्डिंग बन चुकी है मेरी। ये बड़े अच्छे, he's like बड़े भाइयों की तरह है वो मेरे। तो सब ने बड़ा प्यार दिया और बड़े ही अच्छे रहे अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा तला, आपके जो डायलॉग्स हैं, जो पूरे शो के अंदर भी जो एक खास तरीका है, देयर इज अ रिदम टू द साइलेंस। जब दो लोग आपस में बात करते हैं तो जो साइलेंसेस हैं वो बड़ी बड़ी पावरफुल होती हैं। जी तो जब ऐसे मोमेंट्स आते हैं तो एक एक्टर कैसे उसको लेता है, और इस तरह के साइलेंसेस क्या आप लोगों के अंदर खुद से आप लोग डेवलप करते हैं, कि आपके जैसे अदनान जाफर के साथ बहुत सारे सीन्स हैं, तो आपने वो जो उनका भी एक बड़ा ही एक थिएट्रिकल किस्म का तरीका है जिस तरह वो बात करते हैं, बहुत स्टेज फ्रेंडली तरीके से वो बात करते हैं। तो क्या ये जी ब्रीफ आपको डायरेक्टर देते हैं या आप खुद से इस रिदम को पकड़ लेते हैं? क्या कैसे, हाउ डज इट वर्क? डायरेक्टर भी देते हैं, लेकिन मेन काम आपके ऊपर होता है, आपने उसको किस तरीके से लेके चलना है। आप देखें ना, हर किसी के एक अपनी क्लास है कि अगर वो डीजी साहब के साथ जाएंगे तो वो किस तरह के होंगे, अपने दोस्तों के साथ उसका क्या रवैया होगा। और अगर वो सोनिया के पास जाएंगे तो क्या फीलिंग्स होंगी, उसकी अम्मा के पास जाएंगे, सोनिया की अम्मा के पास जाएंगे तो क्या फीलिंग होंगी, उसके अब्बा के पास जाएंगे, रूमी से मिलेंगे तो वो एक वो एक फील है। तो हर किसी के साथ एक अपना अपना एक होता है ना ताल्लुक। तो उसके अंदर जब आप बांट लेते हैं चीजों को तो वो चीजें बड़ी अच्छी निकल आती हैं। I love the way that you said that. That's very true. क्योंकि इंसान जो है ना वो मुख्तलिफ, आई थिंक हमारा अंदाज बदलता है ना, अम्मी के जी साथ कैसे बात करनी है, जी फ्रेंड्स के साथ कैसे ना। तो जी मैंने नोटिस किया था कि यू टुक दैट आप, और आपने जैसे फर्क अपने जब सबॉर्डिनेट बने थे तो इट वाज डिफरेंट। आप मुझे बताएं इसम का डायरेक्टिंग स्टाइल कैसे है, क्योंकि इट्स वेरी डिटेल्ड। मैंने नोटिस किया एक एक कैरेक्टर जो था वो वो ऑन। हाइसम भाई बहुत डिटेल में काम करते हैं। वो बहुत नेचुरल रहते हैं, मतलब कि
वो अगर लाइट चले गई है तो भाई शूट खत्म होगा, अगले दिन उसी लाइट में शूट होगा। अगर अगले दिन वो चीज नहीं बन रही तो उन्होंने अगले दिन पे ले जाना है। मतलब वो इतनी डिटेल में काम करते हैं कि आप देखें कि उनकी एक इस तरह की सर की आदत है कि वो फॉग मशीन तक इस्तेमाल नहीं करते। वो पुराने किस्म का जो धुआं होता है बान, और वो लकड़ियां डाल के कोयले जला के, और वो जो धुआं दिलवाते थे और वो सिनेमैटिक जो फील आती थी उससे, Oh वो wow, प्योर प्योर नेचुरल खेलते हैं चीजों के साथ। that's brilliant. आप That's देखें, अब brilliant. मेरा पहली एपिसोड का एक सीन है जो हम टोटली ब्लैक, और हमारी कोई बात नहीं हो रही। उस टाइम लग रहा था यार शेर ये तो टोटल ब्लैक है तो कोई बात नहीं हो रही। मतलब कि मैं जाता हूँ, मैं मुड़ता हूँ लैंप के साथ बैठा हूँ और मैं कहता हूँ कबीर सो रहा था, कहता नहीं मैं जंतरी देख रहा था। फिर मैं उसके पास जाता हूँ और वो टोटली ब्लैक है। लेकिन जब वो स्क्रीन पे आई ये चीज, वो ये फील हुई कि इतना नेचुरल बहुत कम लोग हैं, और इतनी डिटेल में बहुत कम लोग हैं जो काम कर रहे हैं। वो देखें, वो मैं ब्लैक हूँ, टोटली ब्लैक हम दोनों, और कमरे में सिर्फ एक लाइट चल रही है, वो लैंप की चल रही है। पहली एपिसोड का ये सीन है, शायद आपको याद हो। तो वो इस तरीके से बिल्कुल डिटेल में काम करते हैं और वो नेचुरल रहते हैं। मतलब ये नहीं होता कि अगर रात को सो रहा है तो उसके ऊपर पूरी लाइट दे देनी है। जो रात को नेचुरल उसके चेहरे पे लाइट बनती है उसको वही देंगे। That's There's a beautiful because his work with the light is just stunning. Whether it's the silhouettes, मतलब वो जिस तरह वो अगर कोई एक 2% शॉट भी होता है तो उसमें भी वो बिल्कुल ही मतलब कमाल कर देते हैं। सदफ, हमारे पास कुछ स्पीकर्स हैं, क्वेश्चंस आई थिंक वो लेना चाहते हैं। गाइज, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज कीप योर क्वेश्चंस शॉर्ट बिकॉज तलहा हैज टू रश एंड हमारे पास जितना वो टाइम हमें दे रहे हैं इट्स वी आर indebted to him. सो उमेर हैं, निशात हैं और फिर सबाहत हैं। अगर आप लोगों ने क्वेश्चंस करने हैं तो प्लीज काइंडली रिक्वेस्ट कीजिए माइक, क्वेश्चन कीजिए और अपने आप को लिसनर पे डाल दीजिए। जी उमेर, प्लीज गो अहेड। Ajaz, thank you so much, Mahwash, for giving the जी opportunity, जी, and it प्लीज गो was a अहेड। जी pleasure listening to Tala. My question, because my field script comes from the field of script. Tala, how much did you relate to the book? Yani, when you have a script in front of you, which is based on the book, but then you read the original book. So there is a difference between the script and the original book, as you explained before also. So how much was the influence of the book on your characterization of Captain Farooq? That's what I wanted to ask. सर मैंने बुक उस तरीके से खुल के नहीं पढ़ी। मैं बड़ा खुल के आपको बताऊंगा। मैंने बुक से कुछ चीजें पकड़ी थी जो मैंने कर्नल फारूक साहब से डिस्कस की थी, जो मुझे पढ़ने वाली चाहिए थी। और मैं फिर ज्यादातर मेन हाशिम भाई ने मुझे कहा था कि आप स्क्रिप्ट से ही रहें, क्योंकि अगर मैं बुक से भी रहता और स्क्रिप्ट से भी रहता तो वो दोनों चीजें मेरी वो खराब हो सकती थी अगर मैं दोनों पे रहता। तो मैंने उसमें से जो मेन चीजें कुछ लेनी थी कि फारूक की शुरू के दिन किस तरह के थे उनकी अम्मी के साथ, और उनकी चीजें, उनकी फैमिली कैसी थी, उनके अब्बा किस तरह थे, वो चीजें। फिर मैं मेन स्क्रिप्ट के साथ ही रहा हूँ कि जो उसकी फील्ड स्क्रिप्ट के साथ चल रही है, क्योंकि उसके अंदर काफी फिक्शनल कैरेक्टर्स भी आ चुके थे जो कि वैसे बुक के अंदर तो नहीं है। तो फिर मैं स्क्रिप्ट के साथ रहा हूँ, उसके साथ चला हूँ, और जो हाइसम भाई ने मुझे डायरेक्शंस दी हैं और उसके साथ मैं उसको लेके चला हूँ। जी, हमारे पास माया अली आ गई हैं। आई हैव इनवाइटेड हर एज अ स्पीकर। आई एम होपिंग दैट जो हमारे बाकी के स्पीकर्स हैं वो हमें थोड़ा सा टाइम देंगे ताकि हम माया से छोटी सी बात करें। माया, अस्सलाम वालेकुम। माया, अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए जी, और अस्सलाम विल वालेकुम। वेलकम यू। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं बहुत खूबसूरत हूँ, लेकिन ऑफ ये कि कोर्स। मुझे खुशी इस बात की मुझे खुशी इस बात की माया है कि आपसे कम है, हम आपसे जी कम कुछ। जी, बस वो अस्सलाम वालेकुम थोड़ा ही फर्क है। सदफ, अस्सलाम वालेकुम। फाइनली मेरी अस्सलाम आपसे भी बात हो रही है, मुलाकात तो नहीं, बात हो रही है। एंड आई एम हाँ, ग्लैड कि सब लोग यहाँ पे मिल गए। अस्सलाम मतलब वालेकुम जी। ओहो आए हाय, कैप्टन जी, सर अस्सलाम आए हाय, वालेकुम। आई जस्ट डाइड अ सलाम लिटिल। सुनिया जी, आपको सलाम। I just died a little. Oh my God, this is so cool. I mean, I think कि हम लोग इतने इन्वेस्टेड थे आप दोनों के किरदारों में, माया और तलहा। हम लोग इतना मतलब प्यार करते थे सोनिया से, फारूक से और Aw. रूमी से। We just loved you. सोनिया was मतलब I think she was the perfect kind of point जिसमें हम वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान, because Talha represented the west and जी Rumi was so beautifully. I hope that he can join us as well. हमने उनसे भी सदफ ने रिक्वेस्ट की है। तो मेरी तो बस आप लोगों को बस दुआ है और प्यार है, सवाल तो मेरा कोई नहीं है। आगे आएगा डिस्कशन करेंगे, लेकिन सदफ Maya, कुछ पूछ जी 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 Maya, कुछ I कहेंगी? have to
ask you, I am so impressed with Sonia's character. मुझे ना, मैं आपको कई बार डांट रही होती हूँ अपने रिव्यूज में कि ओ फिर से एक रोने वाली लड़की, लेकिन you played it so well. You did so Thank you so magnificent much. well. Thank you, You Sada. really can act. मुझे गुस्सा अच्छा चढ़ सदफ like सॉरी मैं आपकी why? बात काट रही हूँ लेकिन वहाज is here so Oh we have the yay! trio yay so we are like really in August company. Hello, Wahaj, Honestly, Why? everybody Rumi. feels Hello, like Rumi. it feels like Eid to me. Everybody is like Assalamu I alaikum, swear. Yeah, Eid exactly. Mubarak. This is what I'm feeling right now. It feels like Oh my god, pre-Eid हालांकि pre-Eid Wahaj. celebrations. But thank you so much, guys. Thank you so much for your such no an we are सलाम amazing. ब्रो। so Walaikum indebted. assalam, Captain Saab. How are सलाम you? I ब्रो। hope you're Assalamu good. alaikum, कैसे हैं Rumi. रोमी जी? कैसे हैं? फिट हैं ब्रो? So feels like बहुत I'm back शुक्रिया home after वहाज so और many मैं days. ऐसे मिल रहे होते हैं oh ना सारे. wow नहीं इसलिए क्योंकि आप तीनों जो हैं वो हम बड़ी कोशिश कर रहे थे आई थिंक मैंने आप तीनों से कोशिश की सदफ ने भी की और हम बड़ा चाह रहे थे लेकिन आई एम सो ग्लैड कि इट्स हैपनिंग नाउ बिकॉज द शो हैज एंडेड एंड व्हाट अ ब्रिलियंट ब्यूटीफुल शो इज मैं रोती थी ये कह के सदफ को कि सदफ मैं अपनी जिंदगी के साथ क्या करूंगी जब जो बिछड़ गए खत्म होगा Aww. Sweet. और क्या मैं मैं यहाँ पे कुछ ऐड कर सकती हूँ? प्लीज मैंने प्लीज ऑनेस्टली मैं रिलेट कर सकती हूँ इवन तो मैंने ये कैरेक्टर प्ले किया है इसमें पूरा दिन रात जी हूँ लेकिन लास्ट एपिसोड मैंने आज देखी है मतलब मेरे अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं इसको देखूं और मैं इतने खूबसूरत कैरेक्टर्स को खुदा हाफिज कहूं ऑन स्क्रीन मुझसे नहीं ये हो पा रहा था Wow, yeah, मतलब I don't have words. I just want to quickly add a comment and then obviously Sadaf, please go ahead and ask your question because मेरे पास कोई question नहीं है. I just want to But thank you from the bottom before of my that, heart. but thank you no, so honestly, much but thank you. Mahwash Yeah, आपके yeah, रिव्यूज oh yeah, yeah. sorry no please carry on No, no I please was just trying to say कि आप बोले no, मैं exactly बात करने लगा था कि thank you so much guys for those in-depth reviews. I mean, हम लोगों yeah के लिए एक बहुत important रहे हैं हमेशा से वो और हमारे लिए जितनी भी एक मोटिवेशनल एलिमेंट होता था वो रिव्यूज पे बड़ा डिपेंडेंट होता जी था जी और वो हमेशा से बहुत बेहतरीन रहे और हम लोग फॉलो करते रहे एंड थैंक यू सो मच फॉर फॉलोइंग द प्रोजेक्ट एज वेल और आई डोंट थिंक सो आप लोगों ने कोई ऐसे एज सच पॉइंट रेस किए हैं लेकिन अगर आप कभी भी रेस करते तो वी आर श्योर हम उसको ज़रूर आपके उन पॉइंट्स को एड्रेस करते लेकिन माशाल्लाह से प्रोजेक्ट वेंट सो नाइस कि उसमें हम लोगों अल्हम्दुलिल्लाह ने कोशिश की कि कोई भी कमी बाकी ना रहे और अगर वो रही है तो I'm sorry. नहीं sorry की बात नहीं. This is not a day for sorry. This Yeah, is a बट yeah. day to माविश celebrate. हमेशा हर एपिसोड के बाद मुझे आपके रिव्यू का हमेशा इंतजार रहता था और मुझे लगता था कि अब माविश का आएगा रिव्यू और हमें पता चलेगा कि हमने क्या किया इवन दो सदफ जब करती थी मैं उनका भी पढ़ती थी और मुझे लगता था कि ओके ये भी हमारी एक फैमिली की तरह है कि कभी हमें डांट भी पड़ रही है कभी हमारे बारे में अच्छा भी लिखा जा सब प्यार मतलब ऑनेस्टली एक फैमिली लग रही थी मुझे नहीं माया माया आपका जो काम मैंने है आपको बिल्कुल भी नहीं डांटा दिस टाइम बिकॉज नो यू वर बिग अच्छा सदफ आप डांटती भी हैं ओह शिट मुझे तो पता ही नहीं था लेकिन आपको नहीं पड़ी अभी तक. मेरा बड़े ख्याल से तलहा किस्मत को भी नहीं वाले पड़ी और वहाज को नहीं पड़ी है. इसका माया मतलब है तुमसे इनको बेटर. इसका मतलब है कि इनको भी सीखने का बहुत टाइम है नहीं और ये वहाज को बॉल वहाज बाउंड्री से बाहर और ये बॉल बाउंड्री से बाहर और वहाज ने जो है ना वो माया के मन्नू के जमाने से हम माया को प्यार करते हैं और हमारा प्यार है जो हम माया जहाँ जाती है हम उनके पीछे पीछे जाते हैं चाहे वो रो रही हो चाहे वो मैं हंस चाहता रही हूँ हो कि ये चाहे वो ये प्यार आप माया की तरफ ही रखें ये वाला oh my माया god no please always welcome मुझे बात आपको एक चीज पता है ना कि जब आप डांट आपको पड़ती है तो आप जिंदगी में आगे कुछ अच्छा करते हैं आप सीरियसली एटलीस्ट मैं एक तो चीज या या I just don't like dance. listen माया guys, hands up for this. I just don't like dance. So अगर कभी कुछ ऐसा भी हो तो प्लीज मुझे मत डांटिए. so indirectly आपको पता चल गया सदफ और महावेश के वहाज क्या कहना चाह रहे हैं कि प्लीज मतलब क्रिटिसिज्म को मुझसे दूर ही रखिएगा हाँ सारी डांट माया को बनाए हैं सदफ. नहीं डांटना बिकॉज शी magnificent job. मैं I tell you Beautiful. what, I wish that we had more characters like this for our women. मैं इतनी Yeah. tiny लड़कियों से and you look at this, वो लड़की is like what 50 years ago, तो वो आजकल की हीरोइनों से ज़्यादा active, intelligent, determined, persistent, and Maya brought every part of that out ना.
So I Mashallah, mean, Thank you that so mashallah. was much, Sadaf. that Ma that Ma scene is that Ma is scene an asset. was like, no, she is, and that बाज आपको scene. अच्छा नहीं लग रहा कि सदफ बोल रही है तो बोलने दे. No, I'm just adding my point of view Let her and just finish at no. least. How चलो भाई अब महाज की तारीफ करें. नहीं मैं बता रही हूँ कि हम लोग देखिए there's so बैठे much थे, आई noise. थिंक आप हर आराम से एपिसोड रिकॉर्ड करके लगा दीजिएगा मेरी तारीफ. नहीं. अब महाज की बारी है. We need to ask him a couple of questions. Yes, for ठीक है? sure, Sure. for sure. Okay. जब सदफ आप पूछिए. Sure. I mean, I'm very, very impressed with your roles. Lately, I watched you in Ishq Jalebi, brilliant. And then we Thank you. watched you in Ghisi Peti Mohabbat was before that. I mean, I have been watching you throughout quietly. Thank you so much. Probably. Thank you. Lekin, you know, in Ahde Wafa as well, you were good. But I think in Ghisi Peti Mohabbat, you just told I'm not that able. you stole. Hello. Yes, go ahead. जी. Your voice is breaking. So I'm just not able to get whatever you're saying. So can you please come बहुत again? तारीफ करिए सदफ, दोबारा कर दें जी. सदफ दोबारा Just कर I'm दें. just Okay, making दोबारा sure. से I'm बर्दाश्त just नहीं trying to होगी. make sure कि ये record हो जाए. ये recorded है. I'm just saying that we really enjoyed your performances in Kisi Piti Oh, okay. Mohabbat. And Okay. Yeah. yes, Thank you. I, Thank you so much. I wrote a review for Dawn Images for that one, and I think that you've chosen some fantastic roles. Thank you. All of them different, they're very Yeah. diverse, and this Rumi is like a crown, I'll have to say, because there was so much nuance. Alhamdulillah. How did you do that? आपने कैसे किया? क्योंकि I'm thinking, you know, it must have been difficult as a Pakistani to think of someone who's a rebel. How did you get into that character? I अभी माया तक हंस मुझे रही है. माया's like, कैसे किया? No, honestly speaking, there's a lot of trust involved in the process. और trust था मुझे director पे, direction पे trust था actually. I'll be very honest, कोई conscious effort नहीं थी इन सारे roles की choice में. वो अल्लाह ताला, God has been kind, वो इस तरह से आते गए और वो मैं pick करता गया और उसमें जो teams बनती गई और जो लोग भी इस process का हिस्सा रहे वो सारे बहुत able थे, उनको craft का पता था और वो अच्छा result निकलता रहा. And in Rumi, एक कंप्लीट ट्रस्ट था मुझे हाशिम साहब पे कि कुछ भी जो भी फाइनल प्रोडक्ट निकलेगी या जो भी फाइनल कैरेक्टर बनेगा वो बहुत कन्विंसिंग होगा और उसमें मेरा काम उसके साथ ऑनेस्ट रहना था और अपना 100% देना था और वो मैंने बस ये 2 काम किए और रिजल्ट आपके सामने. तो नथिंग स्पेशल वाज इन्वॉल्व्ड इन रूमी. No, but I want to add one thing about Mahwash. सदफ, हम लोग जिस तरह अब उर्दू बोलना बहुत आसान होता है, राइट? लेकिन अगर आप कोई और एक्सेंट बोल रहे हैं तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है. तो हम लोग अपनी अपनी लाइंस लेके बस एक दफा पढ़ा और उसके बाद हम लोग सेट पे चले जाते थे सर के साथ, सर हाइसम के साथ. वहां थ्रू आउट जब आते थे सेट पे और जाने तक वो इतना इन्वॉल्व होते थे अपने स्क्रिप्ट पे और इन्होंने अपने स्क्रिप्ट पे इतनी चीजें लिखी होती थी और वो याद करना, उस एक्शन में बोलना. एंड समटाइम्स ये बहुत फ्रस्ट्रेटेड भी होता था कि नहीं ये चीज ऐसे नहीं निकल रही. एंड देन ये अपने फोन पे अपनी इनकी फैन है जो उनकी हेल्प आउट करती रही है आई इनको, थिंक उनके साथ इन टच रहते थे. उनका नाम है और वो एक बेहतरीन हेल्प रही है या थ्रू आउट द प्रोसेस. सो हमेशा इन्होंने अमेजिंग, लाइक मैं खुद इनको 11 साल से जानती हूँ, लेकिन मैंने जो जी ये वो यहाँ महाज स्पेस एज में रूमी है. जी वो स्पेस में है. ओके. जी उनको इंशाल्लाह सो आप बात 11 कीजिए. साल जी से मैं महाज को जानती हूँ, बट जो ये रूमी था ये मेरे लिए बिल्कुल नया था, honestly, and I'm really proud of you, Mahaj, honestly. थैंक यू सो मच माया. वी मेड श्योर कि हम एक दूसरे की तारीफ करें. मैं करूंगा, फिक्र ना करो. Oh my, मतलब ये डील हुई थी महाज, क्या बात कर रहे हो? अंजुमन 27 बाहमी जो है ये वाह हमने खोली हुई है. कोई मसला वाह नहीं. वाह, क्या ये बात हम है. इस बात पे महावेश वाह वाह क्या मुकर्रर खूबसूरत बना आपने. मुकर्रर नहीं. लेकिन मैं तलहा पे भी आऊंगी. हमने तलहा का काफी दिमाग खाया है. लेकिन माया, मैं आपसे और वहाज से दोनों से ये सवाल करना चाहती हूँ कि जो ये शो था इसकी कुछ डिविजन्स थी. एक शुरू के एपिसोड्स जो थे वो बबली से, उसमें कुछ मजाक भी, उसमें कुछ तंज भी, उसमें कुछ नोक झोंक भी थी. लेकिन जो एक डार्क सा टर्न आता है हारून की डेथ के बाद
और जी उसके बाद जो आप लोग, आपके अंदर भी एक ट्रांजिशन है, दिस ब्रोकन पर्सन, योर आईज आर टेलिंग अ डिफरेंट स्टोरी। और एक वहाज के अंदर तो एक बिल्कुल ही डिफरेंट किस्म का है, व्हेन वी सी हिम बिल्कुल आफ्टर व्हाइल, वो जो उनका एक फीरल सा वाइल्ड सा लुक है। तो इस दोनों के बीच में आपने, क्योंकि आई एम श्योर आप लोगों के जो चैलेंजेस हैं, जल्दी शूट करना, रैप अप करना, ऑन एयर जा रहा है, प्लस आप लोगों जी के घर है, आप लोग बिजी हैं, आप लोगों के दूसरे कमिटमेंट्स भी रहते हैं, एंड डेफिनेटली एक बहुत चैलेंजिंग प्रोजेक्ट था। तो आप ये बताएं कि इन दोनों चीजों के बीच में आप लोगों ने कैसे उस ट्रांजिशन को कैसे लेके चले हैं। और ये सवाल कुछ हद तक तलहा के लिए भी, क्योंकि जो लास्ट एपिसोड व्हिच आई वाज आल्सो मेंशनिंग कि उसमें उनके जो चेहरा है वो बीटन डाउन है, वॉर टॉर्न है। तो ये आप लोगों ने उस ट्रांजिशन को कैसे मैनेज किया इन अ शॉर्ट स्पेस ऑफ टाइम? ओके, सो कौन आंसर कर रहा है माया आप पहले? कर आई थिंक लें। माया माया आप कर लें। जी सो ओके महाविश, एक तो ये आपको पता होगा जब हम लोग शूट करते हैं ड्रामा या कोई भी प्रोजेक्ट, तो हम उसको सीक्वेंस उसके तरह का नहीं कर रहे होते। कभी हम 9th एपिसोड से कभी कोई सीन कर रहे होते हैं, कभी 2nd एपिसोड से। सो हम लोग को बड़ा एक इक्वली चलना पड़ता है कि आप 9th में क्या एक्ट कर रहे हो, 2nd में और 3rd में। मुश्किल, बहुत मुश्किल होता है। आप एक सीन में मुस्कुरा रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, अगला सीन जो है आपका वो डेथ के बाद के सीक्वेंस है। और इसका क्रेडिट मैं डेफिनेटली सर हायसम को दूंगी। जिस तरह से वो आपको मूड में लेके जाते हैं, जिस तरह से वो आपको एक्सप्लेन करते हैं आपका कैरेक्टर एंड मूड एंड एनवायरनमेंट, उससे आपको बहुत हेल्प मिल जाती है। ऑल्सो मुझे ऐसा लगता है कि आर्टिस्ट जो होता है ना, किसी भी तरह का आर्टिस्ट, वो इतना सेंसिटिव होता है महविश कि वो ना दिल पे चीज़ है। एंड आई थिंक मैं बहुत इमोशनल हूँ, मुझे बाहर तलहा का नहीं पता, बट मैं बहुत इमोशनल हूँ। और जब मैं स्क्रिप्ट पढ़ भी रही थी तो मुझे रोना आ रहा होता था, बार बार मुझे रोना आता यार था। मुझे नहीं आया और वो रोना, भाई पता का नहीं क्यों। चले जाना, आप यार तो इनसे बात कर ले या मुझसे बात कर ले। तुम सब लोग रो रहे थे यार, मैं क्यों नहीं रो रहा था? आई जस्ट फील नहीं बैड। नहीं, आप मतलब आप अपने वो सारे एक्सप्रेशंस जो थे ना स्क्रीन के लिए बचा के रखते थे। आई फील लेफ्ट सो आउट। हम लोगों को वो इतना मुश्किल होता है, स्पेशली जब ये हारून की डेथ का हुआ, फिर फादर का वो सारा कुछ। अम, वो एक बहुत डिफिकल्ट था मेरे लिए, काफी दिन तक भावेश मुझे लगता है कि मैं उस जोन में रही हूँ। स्पेशली फादर की डेथ वाला जो सीक्वेंस था बहुत मुश्किल था। मैं अभी भी जब एपिसोड देख रही थी तो मुझे लग रहा था कि मैं फिर उसी जगह पे पहुंच गई हूँ। बट एक्टिंग एक एक्टर का काम होता है और वो किया है। आप तक वो पहुंचा, बस आप लोगों को महसूस हुआ तो समझे दिल से काम किया। Well, बेशक। Maya, we need you to pick more roles like this. I think you look very good in these more serious roles. ये रोने धोने वाले Sadaf, छोड़ I दे। would love to, honestly, I would love to do these kind of roles, but problem ये है कि मैं आपको अभी भी बताऊं, मुझे 4 स्क्रिप्ट्स ऑफर हुए हैं डिफरेंट प्रोडक्शन हाउसेस से, और वो उनके ना सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो अकॉर्डिंग टू देम कि हमारे ना इस सीजन के बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, और वो यही हैं। और मैं खुद हैरान होती हूँ कि मैं क्या करूँ, मतलब मैं खुद से लिखवाऊं फिर मैं प्रोड्यूसर बन जाती हूँ। Why not, Maya? You can do it. You're a talented person. Why not? बहुत जिम्मेदारी है, प्रोड्यूसर एक फुल टाइम जॉब होती है, फिर आप एक्टिंग नहीं कर सकते। और आई थिंक वो बड़े टैलेंटेड लोग हैं जो प्रोड्यूसर्स भी होते हैं, डायरेक्टर्स भी होते हैं और एक्टर भी होते हैं। सो ये लेकिन मुश्किल है, I लेकिन मैं Maya, don't the men suffer from the same thing? हमेशा वो जो नाकाम आशिक या unreliable husband का रोल होता है, right? And yet they 100% also. नहीं, मैं एग्री कर रही हूँ आपकी इस बात से, तरह ये ऐसा ही डायरेक्टली होता आपको और मुझे कह रही है। हैं, वॉच आउट। Not at all. नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपने तो एक बार सेट कर दिया भाज और तलहा ने कि बड़े स्ट्रॉन्ग आशिक और बड़े स्ट्रॉन्ग आदमी भी होते हैं और उनका तरीका डिफरेंट होता है। बट आई थिंक हमारे राइटर्स और प्रोड्यूसर्स को ये बात समझनी चाहिए कि लोग ये कहते हैं ना कि मैं उनका नाम नहीं लूंगी इन प्रोड्यूसर का, बट उनसे मेरी बहुत लंबी बहस हुई। उन्होंने कहा हमारी ऑडियंस ये देखती है इसलिए हम दिखाते हैं, तो हम लोग तो दिखाते ही नहीं है। अभी जो बिछड़ गए भी तो आया ना प्रोजेक्ट, लोगों ने देखा, आपने देखा, पसंद आया आप लोगों को। जब तक हम कोई डिफरेंट नहीं दिखाएंगे तो लोगों को कैसे पता चलेगा। नहीं, इसमें ये भी है ना कि पूरी दुनिया में हर तरह की स्ट्रीम्स होती हैं। ये वाले भी वो होते हैं ड्रामे जिसमें लड़की रो रही होती है, लड़का नाकाम होता है, मियां अनरिलायबल होता है।
लेकिन ये या कहानियां भी तो होती हैं जिसमें जिसमें लड़की इतनी खुद मुख्तार, इतनी खूबसूरत, इतनी चैलेंजिंग और इतनी डट के लड़ने वाली माविश, होती आई है। थिंक आप अपनी बात भी करें, अगर सदफ अपनी बात करे, मैं खुद को देखूं तो आई थिंक कहीं ना कहीं सोनिया में मैं माया को देखती हूँ। मेरी बिल्कुल लाइफ कोई इतनी आसान नहीं थी, स्ट्रगल रही है हमेशा से। और अगर हम लोग इतनी मुश्किलों के बाद काम कर रहे हैं और खड़े हैं और नाम बनाया हुआ है, अगर करोड़ों में नहीं लाखों में नहीं तो हजारों में तो एक नाम बना है महाविश का, सदफ का, तो हम लोग अपने ये आई डोंट नो ये लोग ये साइड क्यों नहीं एक औरत की देखते। एक औरत हाउसवाइफ बड़ी स्ट्रांग होती है, वो घर चला रही होती है, जरूरी नहीं कि वो रोए रोती जाए। मेरी मदर बहुत स्ट्रांग है। सो प्लीज मैं सबको कहना चाहती हूँ, प्रोड्यूसर्स को, खुदा का वास्ता है ये साइड भी देखें औरत की। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें तो हम आपके साथ हैं, और आपका ये वाला जो दुख है वो हम भी इसमें शरीक हैं, क्योंकि हम भी 100%, हम भी 100%. सोनिया जैसे किरदार देखना चाहते हैं, हम रूमी जैसे कॉम्प्लेक्स किरदार देखना चाहते हैं, और फरूख जैसे जेंटलमैन किरदार देखना चाहते या हैं। Yeah, but निशात both Rumi and Talha were sorry, Rumi and Farooq were gentlemen though. Rumi या akhir tak, I mean, he went against his principles to protect his family. I was so impressed with all of these characters. अब वहाज से भी एक सवाल कर ले. जी 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 प्लीज वहाज, वहाज वरना निकल बिल्कुल। जाएंगे इस नहीं, मैं हाँ चाहता हूँ कॉन्वर्सेशन वही. से। तलहा से करें। मैं आप लोगों की पूरी बातें सुनूंगा। तलहा हम तल तलहा को हाँ, अच्छे हम हाँ, तलहा को अच्छी तरह जो है वो हर तरह के सवालात कर चुके कर हैं, चुके हैं। बेचारे तलहा को ओ इमेजिन भी नहीं कर अच्छा, सकते। अच्छा, ओके ओके, ओके। ओके। ब्रो हम आधा काफी घंटा मुझसे सवाल जवाब हो चुके हैं, मैं वही जी इजाजत ये बस लेने लगा था। इंटेरोगेशन हो चुकी है अच्छा, तलहा की काफी ज्यादा। तलहा को इंटरव्यूट कर लिया आपने। सॉरी ब्रो, जी हम बचा नहीं सके, हम लेट आए हैं, लेकिन ऐसी वैसे कोई बात नहीं, हमने बहुत ज्यादा हमने मोहब्बत नामे ही भेजे हैं तलहा को भी। मोहब्बत नाम ही रखिएगा, देख लें फिर आप। नहीं नहीं ब्रो ब्रो वहाज, मोहब्बत वैसे मैंने देखा है कि आप इतने डरे हुए क्यों हैं? नहीं, मैं बिल्कुल ब्रो डरा हुआ क्या नहीं मोहब्बत हूँ। ऐसा नामे हुआ आपके मैं साथ? अपने अगले प्रोजेक्ट के बारे में श्योर नहीं हूँ, इसलिए कर रहा हूँ माया। ओह ब्रो राइट। मोहब्बत नामे थे और मैंने वो आप लोगों की डील पूरी कर दी है। अच्छा, बस ठीक है, जी अब तारीफें कर प्लीज, दी है मैंने आपकी और माया की। ये अच्छा किया। नहीं नहीं तलहा, नहीं, तलहा अभी अगर आप आगे तक जाना जाना है। चाहें, तलहा अगर आप जाना चाहें जी तो आपको बहुत शुक्रिया, वक्त का आपने हमें दिया, और अल्लाह आपको सलामत रखे, इसी तरह हमारी स्क्रीन पे जीता जागता खुशो खुर्रम दिखाए अगली दफा बहुत शुक्रिया। किसी शो में। मैं सॉरी, मैं तलहा आपके जाने से पहले मैं सबके सामने ये बात कहना चाहती हूँ कि बहुत सालों के बाद हमें एक जेन्युइन टैलेंट मिला, बिल्कुल ट्रू, नो डाउट ऑन अमेजिंग दैट। एक्टर और एक ब्यूटीफुल इंसान, एक खूबसूरत इंसान। मुझे आपके साथ कभी नहीं लगा कि आप नए एक्टर हैं। आपने मतलब 400 परफॉर्मेंसेस, थिएटर परफॉर्मेंसेस की हुई हैं। मैंने आपसे खुद बहुत कुछ सीखा है। नहीं कमाल का काम करते हैं आप, एंड आई मैं विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। हमने इंशाल्लाह बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स आप करेंगे, और जो दुनिया बैठी हुई है ना, ये आपको देखने के लिए, विटनेस करने के लिए बैठी हुई है। इंशाल्लाह। अल्लाह खैर करे, और मैंने आप लोगों से सीखा है। मैंने पिछले आधे मैं नहीं ही घंटे नहीं, में एक्सपेक्ट यही कर रहा था। बताया कि मैंने जो आपसे सीखा है बेसिकली आज ये सुनने के लिए ना मैंने ये पूरी बात खोली है। ये आप पूछ सकते हैं महविश जी से भी, और ये महावेश, देख सदफ रही जी हैं से आप भी किस पूछ किस्म सकते की कमराडरी है हमारे दरमियान। बिल्कुल झूठ बोल रहा है तलहा। आप वहाज कह रहा था कि मैंने वहाज से ना माया से कुछ नहीं सीखा, मैं तो खुद ही सीखा सिखाया था। ये बिल्कुल सही सॉरी कहा आपने सॉरी मावेश, ये सॉरी बहुत सीखे सिखाया है। नहीं, बहुत बहुत मैंने ये ड्रामे देख देख के जो ये मैंने फुप्पो वाली हरकत की है ना, सॉरी, अपॉलजीज। मावस जी इसके बाद ये तो आधे घंटे बाद बंद हो जाना, मेरी हालत टाइट हो जानी है। नहीं 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 नहीं, ये Thank you. रिकॉर्डेड है, ये रिकॉर्डेड है तला, बहुत शुक्रिया आपका, ये रिकॉर्डेड Thank स्पेस you है so much. इंशाल्लाह। Thank you. बहुत Sorry, शुक्रिया, थैंक यू तलहा, बहुत शुक्रिया थैंक सदफ यू। Thank जी, you. मावस जी, आप लोगों ने बुलाया। और ओके माया जी और वाज भाई, अल्लाह हाफ़िज़ नासिर। वेरी गुड तलहा, आप स्टे बिल्कुल वही ब्लेस्ड। कर रहे हैं जो मैंने आपको Thank you सिखाया very था। much. गुड। जी थैंक यू Thank you, sir. जी Thank सदफ, you. वहाज थैंक यू। के लिए कोई सवाल, और निशाद जो इनके Yes, नहीं, आई थिंक कोई वो भी I नहीं। किसी कोई have a question for Wahaj. या Yes, I think Wahaj, Rumi's character was so complex. He was so intense. और आप कह रहे हैं आपको रोना नहीं आया, हमें रोना आया। हम नहीं उसके लिए रो रहे नहीं, थे. बिल्कुल। और आपने जो Lost ट्रांजिशन की बात की थी, वो बिल्कुल वो माया की बात के बाद ऐड ऑन ही करना चाहता हूँ उसमें, कि जिस टर्मोइल से रूमी का किरदार गुजरा था, वो फिजिकली उसके एक्सप्रेशन, उसकी बॉडी में और उसके एक्सप्रेशन में आना बहुत इम्पोर्टेंट था। उसके ओवरसाइज्ड जैकेट्स के साथ, कहाँ वो क्रिस्प वाइट कुर्तों में होता था पहले फेज में अपने कहानी के, और फिर कहाँ उसके बाद ओवरसाइज जैकेट्स में था,
उसका उतरा हुआ वजन, उसकी आंखों के हल्के, उसके लंबे बाल, अगर हम ये एक एलिमेंट उसमें ना लेकर आते तो फिर उसकी कोई इतनी जस्टिफिकेशन नहीं बनती थी। कहाँ वो एक डंके की चोट पे पूरी यूनिवर्सिटी में फिर रहा होता था, और कहाँ उसको अपने घर में आने के लिए वो सहारे तलाश कर रहा था। और जिस तरीके से Oh my God. सिनेमेटोग्राफी की गई है और जिस तरह से शेडोज के साथ प्ले किया गया है, और एक मिस्ट इन्वॉल्व थी, एक मिस्ट्री इन्वॉल्व थी उस कैरेक्टर में उसके आखिरी फेजेस में। और जिस तरह से वो कैरेक्टर खामोश होता गया, अगर आपने देखा हो कहाँ से वो शुरू हुआ था, उसकी स्पीचेस होती हैं, उसकी बॉडी लैंग्वेज होती है, उसकी तकरीरें हैं, वो अपनी अपनी बात से सब कुछ कहना चाहता है, वो अपना मौक़िफ़ हर जगह देना चाहता है। और वो इस सारी बात के बाद और कहाँ वो एकदम उसके बाद सारी खामोशियों में तब्दील किया डायरेक्टर ने उस कैरेक्टर को और कहानी को भी। और ये खामोशी से Wow. मुझे एक शेर Yeah. याद आया कि वो भाई साहब कहते हैं ना कि मेरी खामोशियों में लर्जा है मेरे नालों की गुमशुदा आवाज़। तो वाह। तो वो एक एलिमेंट जो था रूमी में आना, नज़र आना, बड़ा बड़ा ज़रूरी था। और खामोशी में जो बातें होती हैं, खामोशी से खामोशी में भी तो खामोशी में जितना, खामोशी में भी तो हाँ, बातें होती खामोशी में भी तो बातें होती हैं। तो वो बहुत पावरफुल एक एक्सप्रेशन है जो आप जब कुछ कह नहीं रहे होते और आप बहुत कुछ कह रहे होते हैं। एंड आई थिंक इस कहानी में एक हिस्ट्री पे प्रोजेक्ट था जिस पे हमने हमारी तरफ से कभी कोई मौक़िफ़ नहीं किया, हम लोगों ने बात की, लेकिन उसके बावजूद असल जो कहानी थी वो रिलेशनशिप्स पे थी। और आई थिंक इसी वजह से लोगों ने इतना इतना इससे कनेक्ट रिलेट किया, किया। रिलेट किया, या एंगेज हुए। और इतने या और उसके अलावा भी मैं एक और चीज़ भी ऐड करूँगा कि even though in those dark circumstances they were able to manage, वो जो डार्क ह्यूमर उसमें इन्वॉल्व था कहानी में, वो भी बहुत, उससे भी लोगों ने बहुत कनेक्ट किया। और एक एक जो लाइट एलिमेंट आता था तो एक बिल्कुल ही एक बहुत इंटेंस सारी कहानी हो जाती थी। तो ये जो आर्क बनी एक हार्ट बीट की तरह की, ये बहुत इंटरेस्टिंग थी एज एन एक्टर मेरे लिए भी, कि उसको प्ले करना हर चीज़ को, और जैसा फीडबैक आ रहा होता था वो भी बहुत अच्छा लगता था हमें सुनना। Wahaj, you and Maya had the most amazing chemistry, and even Talha and Maya, you guys, Exactly. जब And I think आपका मैंने एक वो लगा, it was like there was so much restraint and yet it was unsaid. जो आजकल है, I mean, a lot of people were saying, oh, why don't we allow a little bit more physical displays of emotion and attachment on our screens. तो मैं सोची थी we don't need them. आप लोगों ने ऐसे illustrate किया that longing and feeling, it was amazing. And I'm sure you will. मुझे ये कि how do you bring that on screen? I mean, बाद में आप शायद हंस रहे होंगे, right? तो हम not at लोग all, not at all. हम बहुत ही, या क्योंकि माया is one of my very close friend, one of my very close friends in fact. we are So actually like a family. We are a family yeah, basically. so हमारे लिए it was kind of tough initially। हम लोगों के लिए खुद एक सरप्राइज था ये कि हम लोगों की जो परफॉर्मेंस नजर आई थी, हम लोग तो सेट पे आई थिंक बात भी नहीं करते थे, राइट माया? Yeah, हम खामोश रहते थे absolutely और right. बिल्कुल भी कोई कनेक्टिविटी नहीं थी ऐसा हमने रखी हुई। और ताकि आई डोंट नो शायद वही रिफ्लेक्ट हुई है, और कोई भी किसी एक्स्ट्रा एफर्ट एज एन एक्टर मेरी तरफ से तो नहीं लगी रूमी को प्ले करने में, इन टर्म्स ऑफ दैट केमिस्ट्री बिटवीन मी एंड माया। आई डोंट नो अबाउट माया, कि माया को भी आई थिंक माया लगी एफर्ट कुछ, आई थिंक फ्रॉम नहीं, बिल्कुल भी सदफ एंड माविश, ऑनेस्टली हम लोगों ने कभी प्लान भी नहीं किया था कि हम जाके सीन्स को ऐसे करेंगे या हम लोग इस तरह से वॉक करके जाएंगे और फिर ये डायलॉग डिलीवर करेंगे। हमने बहुत, आई थिंक हमारी दोस्ती सेट पे आने से पहले कहीं रह जाती थी पीछे। वहां पर रूमी एंड सोनिया होते थे, और इवन हम लोग सीन करने के बाद भी आप कह रहे हैं ना मुस्कुराते थे, हम कभी हंसे वहां से। वाकई ये तो मैंने सदफ की बात के बाद नोट किया कि हम तो कभी नहीं हंसे, कभी हमने बैठ के मजाक नहीं किया कि अच्छा मैं क्या तो है, शायद बिकॉज आप हमेशा उसमें मुझे तो सीन के बाद ये होता था कि मेरा तलफ्फुज का मिस तो नहीं हुआ, डायलेक्ट तो नहीं मिस हाँ, Yeah, मतलब आप मेरा that must हमेशा, be मेरा stressful. कंसर्न या मेरे कंसर्न्स कुछ इस Yeah, तरह के that must होते be थे। stressful. या अच्छा, लेकिन हमारे पास हमारी ना, जी जी माया, हमारे नहीं पास नहीं आप आपसे बोल। प्यार करने वाले बहुत सारे लोग हैं और सबको तो चांस नहीं दे सकते अनफॉर्चुनेटली, लेकिन निशात क्योंकि वहाज की वो फैन है, आई बिलीव, जिन्होंने वहाज को आई हेल्प थिंक की यू थी। शुड जी डेफिनेटली इनकॉर्पोरेट निशित इन दिस सेशन, क्योंकि यस उनका बड़ा एक अहम जी, किरदार है। और सिर्फ मेरे ही कैरेक्टर के लिए नहीं, उन्होंने हेल्प आउट किया। हम लोग जितने भी बंगाली कैरेक्टर्स प्ले कर रहे थे, ऑन एंड ऑफ में उनसे हेल्प लेता रहता था।
जी, तो हमारे पास 2-4 लोग हैं जिनको मैं क्विकली लेना चाहूँगी। आप लोगों का वक़्त जी बहुत जी कीमती है, तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि वो प्लीज़ अपने सवालात और अपने कमेंट्स रिस्ट्रिक्टेड रखें, लिमिटेड रखें और टू द पॉइंट रखें। जी, निशात प्लीज़ गो अहेड, फिर उमैर, उसके बाद आप बात कीजिएगा और फिर ए ज़ोरो ड्रामा नामा के नाम से वो इंस्टाग्राम पे बड़ा प्यारा पेज चलाती हैं, ओ तो बिल्कुल इनको बिल्कुल जी हम बिल्कुल लेंगे। बिल्कुल। जी, जी, निशात, उमैर एंड देन ए ज़ोरो। जी, Assalamualaikum. गो अहेड। How are you? Hello. आई एम गुड निशत, हाउ आर यू? हेलो I'm fine. Hello, Maya. हेलो निशित, हाउ आर यू? I'm fine. I'm fine. आप तो एक फैमिली एक Oh, हिस्सा बन गई है इसका जो बिछड़ गएगा। oh God, I was telling this to Ahad कि मुझे इसके लिए बहुत सुनना पड़ा है. No, but thank you so much. Thank you, Nishad. Yeah. जी, निशात कोई सवाल है? जी। Ahad, how was your experience with me? with you? Yes. Of course, she was your teacher, Bahaz. Of course, She's she made was your it teacher. she's made it about herself. I love this. Oh my God, Nishad. Hmm. Nishad, I cannot believe Lovely, this. Nishad. You're asking me this Amazing. question in this session. Oh my God. Okay. So it was fantastic, Yes. Nishad. You're such a talented soul, I must say. Oh my God. Yes. Yes. So much Okay, all right. butterflies, I know. Thank you. Thank you. Umair, could you please go ahead? Thank you, Nishat, for your comment. I'm sure Wahad had a great experience with you. Yeah, 100%. Nishad is now a great friend. Acha, thank you, Mahwish, for again giving me the opportunity. My question is from Wahaj. Wahaj, I'll qualify my question. I'm actually teaching script writing in a university in Austria. So, and nowadays I'm a visiting faculty in Egypt. So, my question is regarding the I'm script. really sorry. I'm really sorry, Umair. Umair, I'm not able to hear you. Can you please come again? Now, are you able to hear me clearly? Hello. Wahaj, am I audible to you now? Yeah, yes, you are. Yeah. Okay, I'll ask you a brief question and I'll qualify my question first. I'm basically teaching script writing in a university in Austria, and Okay. nowadays I'm a visiting How faculty nice. How in nice. Egypt. Okay, How so nice. my question is regarding the script. The makeup of the script, and especially your character, was so difficult because you had to unlearn everything that you had learned as a child about the partition of East Pakistan, and you had to take a whole new perspective of that historical event. So, how big a challenge was that for you to let go of that cognitive bias that you had developed as a child and make a new perspective? I just wanted to ask that. Thank you. First of all, I never had any opinion on this partition thing. Visually तो हमारे सामने कभी था ही नहीं. I heard a lot of stories from my parents कि ये हुआ था, वो हुआ था about 1971. और एक hatred जो होता है वो कभी भी नहीं था. किसी ने कुछ बुरा नहीं कहा था. Everybody was like कि काश हम अलग ना होते, काश हमेशा साथ रहते. They were Muslim brothers. और वो जो भी एक पॉलिटिकल जो भी वहाँ पे हंगामे हो रहे थे उस सब का इफेक्ट हुआ और हम लोग अलग अलग हो गए. तो वो एज सच इतना मेरे लिए कोई चैलेंजिंग नहीं रहा कि मुझे बिल्कुल एक न्यू पर्सपेक्टिव के साथ जाना पड़ता कैरेक्टर को टेकअप करने के लिए, उस प्रोसेस को अपने साथ इन्वॉल्व होने के लिए उस प्रोसेस में. अदर देन दैट द मेजर चैलेंज व्हाट आई फील इज एंड वाज अबाउट दैट डायलेक्ट थिंग कि मैं कुछ ऐसा नहीं करना चाहता था थ्रू दैट डायलेक्ट कि वो उनका मजाक लगे या उसमें किसी भी किस्म की एफर्ट आए. बिकॉज फॉर मी Rumi was a very इमोशनल इंटेंस कैरेक्टर और एक बंगाली गाय का कैरेक्टर प्ले करना और उस डायलेक्ट के साथ करना, उसको बिलीवेबल बनाना, कन्विंसिंग बनाना कि वो हर आदमी मेनली बंगाली से उससे कनेक्ट करें, वो इम्पोर्टेंट था, वो एक चैलेंज था. And I think God has been kind, or I'm lucky enough, touchwood, to have those great fans and great help from Bangladesh जिन्होंने मुझे help किया. And I was able to get in touch with right people जिन्होंने dialect में मुझे help की और हमने इसको सारा उस तरीके से form किया. And I think this is one of the main reason कि रूमी के साथ सबने connect किया. जी, बहुत शुक्रिया उमैर आपके सवाल का. ए ज़ोरो, प्लीज गो अहेड, आप कुछ पूछना चाह रही हैं. Yes, hello, hi, this is Aisha, and I've been an absolute fan of the entire play. And Thank you so much, Aisha. the nuanced acting, and the beauty of this play was, I think, that you took college romance, cousin romance, love triangle, and you gave True it that. like such a great dimension. कि
it wasn't even about the love because the romance was ideological, but we saw it in such a light, we saw a bigger picture, and your passion for each other was for the country. So, I mean, it was just beautiful storytelling and beautiful performances. Thank you Thank So, so you. much. Thank you so heartfelt, much. thank you so much for such stories. Like, really, thank you so This much. was so Thank you cool. so much, Zara. I Means a think lot. we'll Thank you. I don't think we'll get a lot of questions. I think you'll just get like people gushing over you guys. Yeah, I'm sorry, I have no Can I just say, questions. your Drama Nama, the page is one of my favorites. You do a So fantastic. They beautiful, make so such Thank you beautiful. beautiful so edits much. and collages. I remember. I've Yeah. seen a couple of them. So yeah, please Thank go you ahead. so much. You're very talented. Assalamualaikum. No, yeah. So it's just Ji, a lot of appreciation. So thank you. Assalamualaikum. thank you आयशा जी, वालेकुम सलाम। ये हैं Sidra. सिड के जी। सिद्रा, अपने माइक Finally, को जरा ठीक I कर get लीजिए। आप अपने माइक से जंग बंद कीजिए सिद्रा जी। finally I get a chance to speak with Maya and Wahaj. I'm shivering right now. If No, it's I'm okay. not wrong, so it's Sid K Yes, also. Maya, it's me. Oh my God! Finally, good to Who's see यार there? you. इतना आप Who's there? लोगों ने यार वहाज क्या हो गया सिद्रा हूँ मैं Yeah, I'm so sorry. Oh, Yaar Sidra, I'm so Bahaj, sorry. I'm not yaar able Bahaj, to. yaar. There's some problem with my internet connection, so I'm not able to hear. वो बीच में वहाज आवाज चली जाती है। वहाज First of all, thank you so much, Sidra, for all the love, all the posts. Thank you so It's much. my Thank you so pleasure, much and for being I'm there. so happy that I get a chance to speak you to all. And मैं अब बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश थी कि आप लोगों ने एक साथ प्रोजेक्ट किया. And I'm blessed to Allah to have you both in my life. And अल्लाह ताला आप लोग को Thank you so much, Sidra. हमेशा Thank you so कामयाब much. करे, हमेशा आप लोग को हर बुरी नजर से बचाए. एंड आप लोग मेरी फैमिली की तरह हैं. और आई होप माया आपने मुझे मेरा गिफ्ट आपको पसंद आया होगा. मैं आपको अभी कह देती हूँ सबके सामने, और थैंक यू सो मच सिद्रा फॉर योर ब्यूटीफुल गिफ्ट. मुझे पता है उस पे एम लिखा हुआ है और साथ में चीजें हैं. तलहा का गिफ्ट उन तक पहुंच गया है. आज का मेरे पास है बिकॉज वो लाहौर में नहीं थे और मैं कब से कराची में हूँ. सो थैंक यू सो मच फॉर योर thank you लव. so much थैंक यू. and love you so much, all of you. Take care. लव Bye. यू मोर. थैंक यू. Take a lot of care. Good luck. Bye. Take care. Bye. Bye bye. जी, Hello, could I अस्सलाम please वालेकुम। get Jia next? I'm going to take on Sonia and then Ira. उसके बाद आप लोग please बोलिएगा। जी, please keep it short and sweet and thank you so much. Please go ahead. All right. Hi, this is Gia. Hi, Jia, Jia. how are you? I'm good. How are you, Maya and Wahaj? I'm good. I'm Good, good. How are you doing? alhamdulillah. First of all, I just want to appreciate you both. Like, you've done amazing job as Sonia and Rumi. Like, Means so much. Means so much. Yeah, Thank you so thank much. you so much. Thank you. and I just want to ask one question. It's just like the main question of from all of us. Like, what is the conclusion? What is the closure of like the triangle we have? Like Farooq, Sonia, Rumi. What do you I think? knew this thing for a maybe, fact. maybe, maybe I we are knew this planning. thing for a fact. People are gonna ask this question to us. Maybe. Maybe we are planning season 2. Oh my God. So what do you Yeah, think? thank you so much, Wahaj. ऐसी बातें ना करें, वैसे ऐसी बातें ना करें। ऐसे ड्रामे का सीजन 2 नहीं होना No, चाहिए। so basically, Mahwash, हुआ Why ये था not, जो Mahwash? actual Why book में not? भी actual book जो थी कर्नल फारूक की, उसमें भी ये था कि सोनिया जो थी उनका पता ही नहीं चला कि वो कहाँ गई, वो जिंदा है या वो नहीं है. And then आपको पता कर्नल फारूक कहाँ पर है. But who did Sonia like was going to be with? Like Farooq or Rumi? मतलब क्या था ये हमें What अभी do you तक नहीं. think? अच्छा, आपको क्या लगा देखने के बाद? हम तो सोमी शिपर्स है ना, तो हम तो वही चाहते हैं. Sweet. मैं So भी यही चाहता हूँ. basically, बहुत ऐसी We know चीजें that. लाइफ में ऐसी होती हैं, जिया. No, but honestly, लाइफ में बहुत बार ऐसा होता है कि आपका दिल कहीं होता है और आपका दिमाग कुछ कह रहा होता यार है. अब So एक जगह सोनिया कर की रहे हो कंडीशन. दिमाग. माया, just don't do this यार to me. आप माया से कह रहे हैं या सोनिया से कह रहे हैं? What is your problem, Sonia? So, At least now you can tell. you, Rumi, you were my problem. You were not listening to me. At least Thank now you you so can much tell. for Thank you, thank you. थैंक यू सोनिया। thank you, भाई thank you. सोनिया एक खातून बैठी हैं और आपका नाम बड़ा अच्छा है, बड़ा रेलेवेंट नाम है। जी, गो अहेड सोनिया। Shukra. Assalamu alaikum. Oh, First how of nice. all, Assalamu Walaikum alaikum. assalam.
apologize अगर मेरी उर्दू इतनी अच्छी नहीं है. I'm actually Afghan, लेकिन मैं आप दोनों का बहुत बहुत बड़ा fan हूँ. Thank you so much. Where are you from, by the way? I'm अभी फिलहाल मैं टोरंटो में हूँ, like Toronto, Canada, and but originally I'm Afghan from Afghanistan. Oh, Oh, how nice, nice. nice, lovely. By the way, yeah, Sonia. Hi, Sonia. 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 Thank Sonia. Okay, right. Thank you. बस मेरा एक ही सवाल है कि आप जी जी, please. I joined a little bit late, so maybe you guys already talked about this. But before, obviously, like I'm a huge fan. दोनों की like together on screen or up like the shows Ishq Jalebi and Manmail बहुत like it's one of my favorite shows. Thank you so इस much. show में आप दोनों की कौन सा सीन था जो बहुत मुश्किल था आप दोनों के लिए जो Oh my God. shoot के लिए Okay. what आपका क्या मतलब like मेरा और बहाज के साथ में scene या we can mention a either separated or scene as well. एक साथ में or a separate scene में कौन सा like Right. जो था जो मुश्किल था like you know what was that? Okay. So सोनिया मेरे लिए हमेशा से जो सीन है जिसमें बाप और बेटी का रिलेशन होता है या उस तरह की चीज मेरे लिए हमेशा बहुत मुश्किल होती है. So especially that scene where my father died, that was a very difficult scene to portray for me. और उसके अलावा जो मेरा लास्ट सीन था रूमी के साथ जिसमें मैं उन्हें कहती हूँ कि हम औरतों को बचाने जाते हैं और वो सारा कुछ वो मुझे मैं उनको हग करती हूँ वो सब कुछ के एक रिलीफ मुझे मिलता है कि मैं मतलब कि फाइनली रूमी इज हियर टू सेव सोनिया राइट. तो मुझे लगता है कि ये दो सीन मेरे लिए बाकी सीन से ज्यादा मुश्किल थे. अच्छा. For me, I think every scene was so difficult, and I felt like I'm giving an exam her scene mein. So every scene was so tough for me. But specifically, if I consider कोई एक scene जो सबसे ज़्यादा मुश्किल था, तो I think those speeches जो पहले phase में थी कहानी के उसमें बहुत I felt कि उसमें बहुत इमोशनल एलिमेंट रिक्वायर्ड था और फिर डायलेक्ट इन्वॉल्व था तो वो दोज ऑल स्पीचेस दोज वर टफ फॉर मी. जी इरम सुहेल कुछ पूछ रही हैं. जी Yeah, जी can जी I सदा. jump in? Sorry, Mahwash, Sada. I hope I didn't interrupt you. I wanted to jump in, थोड़ा सा privileged co-host होने का इस्तेमाल करूं. One of your fans keeps asking me to ask Maya and Wahaj about their audition process. हुई थी कोई audition process? मेरी तो बहुत सबसे audition पहले हुई थी, इरम मैंने तो बहुत अस्सलाम वालेकुम. I think I saw your tweets. Maybe I'm right about it. Okay जी, आप audition का पूछ रही हैं इरम? No, it wasn't Iram. I think it was Mona or Munia, one of your fans. तो आप ऐसा Okay. करें या फिर वहाज से पूछ लेते हैं, ठीक है? Okay, sure. मुझे कुछ समझ नहीं आई. जी जी. नहीं आप अपना प्रोसेस बता दें माया वहाज. मुझे sorry मुझे question समझ नहीं आ रहा था. ऑडिशन प्रोसेस है. ऑडिशन प्रोसेस क्या हुआ था आप लोगों जी जी ऑफ कोर्स मेरा भी ऑडिशन हुआ था. मेरी लुक टेस्ट भी हुई थी और बहुत डिसाइड किया गया था कि पहले मैं हूँ नहीं हूँ और किस तरह से मैं पोर्ट्रे करूंगी. बंगाली एक्सेंट लेकर जाऊंगी या उसके बगैर हम लोग जाएंगे. और आई थिंक मेरे साथ बाकी कुछ और भी एक्टर्स थी लेकिन जिसकी किस्मत का होता है उसको मिलना होता है. एंड वहाज का प्रोसेस वहाज बता सकते हैं ऑफ कोर्स. Hello, Wahaj, can you hear us? Hello? Are you here, Wahaj? Yeah, let's wait for him to come back. Iram कुछ पूछना चाह रही है. In the meantime, we'll come back to Wahaj's audition story once I think there's some connection issue. Iram आप कुछ पूछना चाह रही हैं? But as far I know, Wahaj का भी audition हुआ था. As far I know. अच्छा जबरदस्त. Even Captain Farooq के character के लिए भी तलहा का हुआ था. That's a great practice. We should have auditions for sure. इरम कुछ पूछना चाह रही हैं? जी इरम. जी महविश, thank you. Assalamu alaikum. Maya, if you remember me. जी. What should I note? जी अस्सलाम वालेकुम. I just wanted to note कि Wahaj is not here, so अगर आपको कोई question है तो आप माया की तरफ direct कर दीजिए. जी it's a general question और मैं माया को बोलूंगी अस्सलाम वालेकुम. Thank you for taking me over. Iram, Maya, you remember me? You came to GCU as Shaukat Khanum ambassador, and I was there for your Pink Ribbon campaign.
and I have been Okay. following all your dramas. Thank And you. Thank you so much. this is such a it is going to become a cult classic, I am sure, because Alhamdulillah. the direction, the cinematography, the photography, and everything was just as dark as it should have been in the 70s and at that time of secession of Bangladesh, as we call it, Sakute Dhaka. So Maya, जी जी. kudos to you and Wahaj and the entire team. Thank you I so only much. want to ask you, how did you, carry off that, carry on that accent of, in that era, sorry, so to say. ओके सो इरम मेरा एक्सेंट जो था वो बंगाली बिल्कुल भी नहीं था बिकॉज हम लोगों ने डिसाइड किया था क्योंकि मेरी जो मदर थी नादिया जमील उनके बारे में आप मैं क्या ही बोलूं क्या कमाल की एक्ट्रेस हैं वो कमाल की Oh yes, अमेजिंग ब्रिलियंट amazing, आपको amazing. आप वो उनके सीन में अगर सिर्फ उनको सोना होता था ना और वो सोने को भी इतना खूबसूरत बना देती थी महाविश की वो सीन कहीं से कहीं चला जाता था उनको दिखाया था कि वो वेस्ट पाकिस्तान से हैं और उन्होंने मुझे बचपन में मेरी नानी के घर भेज दिया था तो हाइसम सर चाहते थे कि ये जो एक डिफरेंशिएट है ना ये एक्सेंट्स का ये रहना चाहिए सोनिया में स्पेशली रूमी में इसलिए मुझे थोड़ी कम मेहनत करनी पड़ी एज कम्पेयर टू वहाज बट इमोशनली आई थिंक मेरे लिए बहुत टफ था ये कैरेक्टर सोनिया का कैरेक्टर क्योंकि एक तो बहुत टाइम के बाद मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर मिल रहा था और आई रियली वांटेड टू गिव माय बेस्ट क्योंकि ये सोनिया बहुत लड़कियों के लिए और आप कोई अच्छी चीज करते हैं ना कोई डिफरेंट चीज करते हैं तो आपको लगता है कि आप बाकी लोगों के लिए रास्ते खोल रहे हैं डिफरेंट चीजों के लिए तो मेरे लिए मुझे लगता था कि ये प्रेशर मेरे ऊपर बहुत ज्यादा है और इसको आसान डेफिनेटली सर हाइसम ने किया एंड देन जो मेरे साथ मेरे को एक्टर्स थे उन्होंने किया एंड दैट्स इट अच्छा वहाज कहीं चले गए हैं और वापस उनका I आना इस have वक्त मुझे no नहीं clue. You want him to message? You So want me to message him? absolutely, thank you so much, Maya, Thank you so for much. this. Thank you. But you have always been my favorite actor, and so is Wahaj. And kudos to both of you, and good luck for your future Thank you. ventures also. And I think there shouldn't be a season 2 of this play. That's my opinion. I may be wrong, but there shouldn't be a season 2. This ये हम this जो is कर्नल फारूक है उनसे बोलेंगे कि वो एक और किताब लिखें उसके बाद okay. फिर हम लोग स्क्रिप्ट लिखेंगे थैंक चलो यू सो ठीक मच है. Okay, take care. Bye. थैंक Thank यू you, Mahwash, बाय for giving me. सबका हम रैप अप करना चाह रहे हैं अगर वहाज हैं तो काइंडली वहाज आप ये माइक दोबारा रिक्वेस्ट कीजिए क्योंकि मुझे आप दिख नहीं रहे हैं स्पेस के अंदर अगर आप हैं तो जी फहाज ही को इज मैं हियर देख रही हूँ जी जी वो सुन ही इज पा रहे हियर हैं बट आई डोंट ही इज जी हियर जी ही इज हियर राइट ओके यस ब्रिगेडियर अशफाक हसन साहब हैं आई एम जी जस्ट टेकिंग द लास्ट राउंड ऑफ क्वेश्चंस नाउ अंशी हैं और अजान हैं so we'll end with ओके these round of questions. We have one or two questions of our own, and after that we will end I'm this so space sorry. because I'm so sorry, like guys. I'm नहीं just कोई yeah, मसला yeah, नहीं कोई मसला नहीं कोई ओह मसला नहीं मैं फाइनली ही इज हियर yeah, yeah. या ही इज हियर ब्रिगेडियर अशफाक हसन साहब हैं जल्दी से प्लीज आप सर जी सवाल थैंक यू कीजिए वेरी मच हमारे पास बालकृष्ण थैंक यू वेरी मच जी मैं आपको बताऊं कि मैं ड्रामे वगैरह देखता नहीं हूँ मैंने एक दिन आईएसपीआर में मेरे दोस्त हैं तो उन्होंने मुझे वैसे कहा कि सर ये एक ड्रामा हमने लॉन्च किया इसको आप देखिएगा और कमेंट कीजिएगा आप बिलीव करें कि मैंने इसकी पहली जो किस्त देखी है उसके बाद जैसे इसने मुझे जकड़ लिया हो इस ड्रामे ने और इसमें एक तो जो थीम उन्होंने पेश किया हुआ है जो एनवायरनमेंट क्रिएट की और जो माशाल्लाह माया ने मैं इतना जानता नहीं हूँ एक्टर्स को लेकिन माया को मैंने देखा बाकी लोगों को देखा वो बहुत अच्छा सर उसी थैंक यू सो बैकग्राउंड में मच सारा तो माई सल्यूट टू यू पीपल कि आपने बहुत अच्छा एक पैगाम दिया इस मुल्क को ना सिर्फ इस मुल्क को पूरी दुनिया को थैंक यू वेरी मच फॉर दिस sir these comments coming from you thank you so much and I really want to say something to you मुझे मेरा कोई फैमिली में कोई आर्मी बैकग्राउंड नहीं है कुछ नहीं है लेकिन मैंने इस प्रोजेक्ट के साथ आर्मी के लोगों की तकलीफें उनकी फैमिली के इश्यूज और उनकी मुश्किलों को ना देखा है जिया है सो आई सल्यूट यू गाइस ट्रस्ट मी
जो आप मुल्क के लिए करते हैं और जो हम सबके लिए करते हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। और वो तला जो आपके साथ है ना, उसने मुझे फोन किया था, मैं जब ब्रिगेड कमांडर था रहीमयार खां में, तो वहां पे पढ़ता था जी एपीएस में, तो मैं उसको बड़े इनाम शनाम अच्छा देता था। और मेरे बेटे का दोस्त है, तो उसने स्पेशली मुझे मेंशन किया कि आप देखिएगा इसको, तो वेरी वेल डन। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया जनाब। हमारे सामने अंशी हैं और अजान है। क्विकली प्लीज आप लोग जी अपने कमेंट्स या क्वेश्चंस दीजिए ताकि हम स्पेस को थोड़ा अख्ताम की तरफ लेके जाइए। जी अंशी, कहिए क्या कहेंगी। Yeah, hi. Hi, Vahaj. How are you? Hi, Anshi, how Maya. are you? Mehvis, हाय Sadaf. अंशी, I'm good. I'm I I'm good, read I'm all great. your hello। all your those beautiful tweets. I always read them. And thank you so much Okay, for thank so you. much love. Thank you, Vahad. Okay, I don't know. I just want to start off with a very small complaint. Okay, Complaint? because Oh, everyone, sure. yeah, a very small complaint as a viewer. Okay, just take it as a constructive I criticism, will whatever. definitely. That's what I So, do. okay, so I wish nothing. Mahaj। Okay, so as a viewer, who was invested in Rumi and Sonia's individual journeys, also their जी journeys sort of as a couple or a pair, whatever you can call them, I just felt that the ending was a bit abrupt. I was या hoping for a proper closure for the both of them. I just felt Rumi's death was very sudden. Like I would have loved it if there was a proper death sequence, or maybe if we found out what Why happened you with want to see Sonia Rumi by the dying? end. Why you want to see that I pain? yeah, Just tell me one just way. for the Why? I just feel such deaths are Why? memorable because of I that. understand, but why you So want to see also Rumi dying? Maybe Rumi is not dead. Maybe no, maybe I maybe think he was maybe pretty Rumi much is maybe dead. Rumi is alive. You Yeah, so I just feel if we could have got that closure, like I that, understand what you're this is what saying. happened with these characters, I know what you're saying. and Yeah, yeah. yeah, and 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 another thing, I would like to ask Ibahaj, Maya, both of you, like, how do you perform? I mean, what is your mindset before performing certain grueling scenes? For example, your scene with Nadia ji, it was spectacular. It was so well performed by you and Nadia ji, when she curses Rumi, and Rumi is shocked. There is grief, I think and I think for that it scene I was have so to well yeah. done. I think for that scene I have to give all credit to Nadia Nado Appa because she's such a Hmm. fantastic actress. Okay, whenever you're working with the people who actually know the craft, you don't have to give or put in that kind of effort. So it's all about action and reaction. So I just reacted to those expressions and that anger, और वो उस नफरत को I just responded. So it came out good. Okay, thank you. And Maya, this was your best performance, I would say. Vahat, Maya, you were fantastic. थैंक यू अंशी, थैंक यू सो Thank you, मच, guys. Thank you, थैंक यू। Thanks, thank you. thanks. Thank you, Yeah, Anshi. Thank you, Anshi. thanks. Azan, please go ahead. And guys, this would be our last guest speaker. We have a few questions from ourselves, which we want to ask Maya and Wahaj, and Of then we'd course. thank everyone. And we would want to just Azan, बेचारों का हमने बहुत ज़्यादा Aslam, Azan, Assalamu Azan. alaikum. ओए Sorry. अजान तो वालेकुम बड़ी अस्सलाम। जनाना निकली भाई So, आप तो। sorry, it's my son's name. So, my मेरी ID का वो है. I'm Go really ahead, sorry. go आप ahead. सबको How sweet, अस्सलाम how वालेकुम. cute. वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। मैं सिर्फ सवाल तो मेरा कोई भी नहीं है, लेकिन मैं तारीफ करने के लिए आई हूँ. जो बिछड़ के इसीलिए आपको has इनकॉर्पोरेट touched my किया. heart. प्लीज कीजिए. So, मुझे था कि मुझे माइक नहीं मिलेगा. नहीं Thank नहीं God हमें मिल पता था गया. आपने तारीफ करनी तो है, so that's why we just यस आपके लिए बहुत सारी तारीफ है मेरे पास क्योंकि आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ योर्स. आपका काम बहुत ही अच्छा है और आपने thank you so बहुत much. ज्यादा ग्रो किया है एज एन एक्टर टाइम के Definitely, साथ. definitely, definitely. और एवरी प्रोजेक्ट जो भी आप चूज कर रहे हैं वो बहुत बेस्ट है. और जो बिछड़ गए है बहुत ही अच्छी है. आपकी रूमी की जर्नी को हमने महसूस किया है, स्पेशली दैट सीन विद हारून जब उसकी डेथ होती है. वो जब वो भाग रहा है कॉरिडोर्स में और रूमी उसके पीछे है, वो बहुत ज्यादा टचिंग था मेरे लिए. और उसकी डेथ आई कांट एक्सप्लेन यू, दैट वाज लाइक बहुत टचिंग था वो. और आपके लिए बहुत सारी बेस्ट विशेस. आप जो भी प्रोजेक्ट करें इन फ्यूचर बहुत अच्छा हो आपके लिए. Thank you so और much. Thank you so much. कमिंग कमिंग और मैं बहुत खुशी है मुझे आपसे बात करने का मौका मिला. I'm a huge fan of yours. And Thank you. coming back to Maya, hello Maya, how are you?
Hello, जी अस्सलाम वालेकुम. I'm good, alhamdulillah. वालेकुम अस्सलाम. वालेकुम अस्सलाम. Um, आपका बहुत one of your best performances in जो बिछड़ गए. Thank you. Very intense, बहुत ही ज्यादा आपकी लुक को लेकर आपकी जो भी है, और लाइक ऑल्दो हम चाहते थे कि रूमी के साथ ही सोनिया हमेशा से रहे. मैं वही हूँ जो हाँ चाहते थे कि ऐसा हो, लेकिन वो बाकी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था फिगर आउट करना कि किसकी तरफ है सोनिया. लेकिन ये है कि बहुत ही अच्छी है आपकी परफॉर्मेंस भी, और आपके जो भी बहुत प्रोजेक्ट्स होते हैं शुक्रिया. आप बहुत अच्छा परफॉर्म करते हो. और बस यही मैंने तारीफें करनी है आपकी बहुत बस सारी. और थैंक यू सो जो मच. आपको पता है आपकी तारीफें जो होती है ना हम लोगों के लिए एक पानी की तरह होती है. हम लोग या खिलते हैं नो आपकी तारीफों से, आपके प्यार से. आई नो आई नो आई नो. और बहुत सारा लाइक पाकिस्तानी ड्रामास को हम बहुत पसंद भी करते हैं, जो भी प्रोजेक्ट्स आते हैं एंड दे आर वेरी थैंक क्लोज टू आवर हार्ट्स, बिकॉज जो भी और जो इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं सब्जेक्टिव होते हैं और जो इश्यूज पे होते हैं वो मुझे बहुत पसंद आते हैं. और बहुत ही अच्छे से डायरेक्ट किया गया है. पूरी कास्ट जो है वो बहुत ही ब्रिलियंट परफॉर्म किया. स्पेशली नादिया जमील जस्ट वो तो हैं ही बहुत ब्रिलियंट. उन्होंने हर सीन इतने अच्छे नो से किया डाउट. है. जी बिल्कुल. बहुत ही अच्छा. और एवरीथिंग जो भी तला जहूर इज वेरी नाइस एडिशन टू आवर इंडस्ट्री, एंड आई नो ही इज डेफिनेटली. गोना डू वेरी गुड Definitely, मार्क फॉर definitely. हिमसेल्फ. बहुत शुक्रिया ये अजान नहीं अजान नहीं क्या नाम है थैंक यू. आपका? Azan ki अजान की mother. मेरा मम्मा नाम का. अच्छा Azan's उम्मी mom. अजान उम्मी अजान बहुत ये शुक्रिया. ये अल्लाह आपको थैंक खुश यू. रखे. थैंक आपकी थैंक दुआओं यू का जी. जरिए आपको भी. बनाओ का बहुत शुक्रिया. आपको भी. माविश आपकी स्पेस बहुत अच्छी है और बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव है. मैं बहुत अच्छे से सुनती हूँ बिकॉज बहुत इंफॉर्मेशन मिलती है. जो हम कहना चाहते हैं वो आप लोग यहाँ पे बात करते हैं तो वो बहुत अच्छा लगता है. थैंक यू. अल्लाह करे आप जैसे बहुत सारे स्पीकर्स और गेस्ट स्पीकर्स मेरी स्पेसेस में आते रहे और हम सबका ओह हुस्न 2 किलो थैंक यू. बढ़ता रहे. बहुत शुक्रिया बहुत थैंक यू. शुक्रिया. थैंक यू. Have a थैंक यू. have थैंक a have a good evening. Thank you. यू टू. I Sadaf, would you please want to take like some concluding questions and I'll take mine and then we'll take a few comments from Maya and Vahaj and we'll kind of wrap Sure. it up. So I have a quick question for Vahaj. Maybe it's not Jo Bichar Gaye, but since watching Ghisi Piti Mohabbat, I've been a little bit obsessed about that character. Na? Even I am. So, But my wife yeah, hates that character. I don't know why. really? But But he's such a bad boy. He's such a bad I boy. Well, I I remember love those playing scenes. that bad boy. Uh, Yeah. Please go ahead. how much of Vahaj is in those scenes? That's what we want to know. How much of Vahaj is in that character? Ya Allah. What do you want to listen? I think you would want my happy life. नहीं ये वहाज की बेगम को नहीं है स्पेस में नहीं आपने वहाज क्या की पूछ लिया सदफ? आपने क्या Sadaf, पूछ लिया? Sadaf, listen. I मुझे जीने दो. सदफ ये मतलब वहाज की बेगम को तो नहीं ढूंढ लिया उन्होंने स्पेस में कहीं बाहर. Sadaf, please tell me. वो नहीं किसी नहीं और अकाउंट से भी सुन रही होंगी. I think हर इंसान मौजूद है. अभी मैंने एक recent इंटरव्यू में भी ये बात की थी. तो Maya, why are you laughing? Please don't laugh. Sadaf, I think If I'll you answer you actually this mean question this, in DM. Okay? So please. Okay. I'm sorry, Astaghfirullah. no, please carry on, Maya. Please carry on. So no, I Yeah, mean, this question is, I want to answer, but I cannot. Look, I think he is a very modern guy. After doing the bad things, he kind of regrets, doesn't he? वो थोड़ा सा याद करता है उस लड़की को जो रमशा का character. Ramsha, of course, was brilliant as well. So I think it's a reflection of modern love. Maybe that's it. Not really. Riz was very selfish character in a way. That's what I mean, modern love. Right? जो No, रूमी था वो love is love. Love cannot be modern or old. Love is love, and love will stay forever. Love is a beautiful feeling in the world. और वो love is love. वो एक उसकी कोई stages नहीं होती इस तरह से कि वो तब्दील हो जाए. वो हमेशा से एक जैसे ही रहेगा. लेकिन हर इंसान में that's what I feel कि हर इंसान में एक बुरा इंसान होता है, एक अच्छा इंसान होता है. अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने अंदर के एक बुरे इंसान को अपने अच्छे इंसान पे हावी ना होने दें. So yeah, and as an actor, I feel कि sometimes I feel वहाज का जब मोहब्बत या प्यार होता है वो इंसान को बदल देता है. कभी अंदर का जानवर जगा देता है तो कभी उस जानवर को मार देता है.
So बड़ा बस आप मजबूत इसको I इमोशन think है ना इसलिए। बहुत स्ट्रांग और है। आई थिंक इसी चीज को हम So एज एन एक्टर्स यूज करते हैं एक्टिंग में, कि अपने अंदर से ही कुछ कैरेक्टर्स जी निकालते हैं और उनको फॉर्म करते हैं, और वो एक हम सबका एक हिस्सा होते हैं। आई थिंक हम लोगों को एक डिसएडवांटेज ये है कि सब लोग देख लेते हैं हमारी पर्सनालिटीज के वो सारे हिस्से, वो सारे शेड्स, लेकिन इसका ये हरगिज क्या मतलब नहीं खूबसूरत है, बात की है वहाँ। इसका ये हरगिज क्या मतलब नहीं है कि हम टेक्निकली बुरे इंसान हैं। I've noticed that both Rumi and the character in Ghisi Piti Mohabbat, both of them were on the edge. They were on a line. एक line में थे ना कि just they could go to the bad side, they could go to the good बिल्कुल side. बिल्कुल। So that's what I thought was very very beautiful about both these characters. और आपने किस तरह उनको अदा किया कि we had that feeling कि पता नहीं अभी गलत कर देगा अभी सही कर देगा. आई थिंक So अगर मैं इन दोनों किरदारों को ये सोच के निभाता कि मुझे क्या लाइन, किस लाइन को क्रॉस करना है या किस लाइन को क्रॉस नहीं करना, तो शायद मुश्किल होता। मैंने आई जस्ट डिड व्हाटएवर वाज रिक्वायर्ड फॉर दैट कैरेक्टर। उसके इमोशन को कितनी ऑनेस्टी के साथ किया है, उसके इमोशन में कितनी ऑनेस्टी रिक्वायर्ड थी, चाहे वो रिस्क की सेल्फिशनेस हो उसमें कितनी ऑनेस्टी रिक्वायर्ड थी, और चाहे वो रूमी कि कितनी मोहब्बत है उसमें कितनी ऑनेस्टी रिक्वायर्ड थी। अगर मैं उस ऑनेस्टी का नाप तोल में कमी पेशी करता तो शायद वो लाइन क्रॉस हो जाती। वो कैरेक्टर से बिल्कुल डिफरेंट थे, तो इसीलिए वो बिल्कुल डिफरेंट ही लगे। thank you. And can I make one last question to Maya? वहाज ने जी तो जी खूब इम्तिहान लिया, माया का आखिरी इम्तिहान है. Maya, when are we going to get Osmaya back? उस्मा जो आपको दोबारा उन पे मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो आई विश कोई कुछ सुन रहा है, कोई प्रोड्यूसर तो सुने। तो हमें कोई प्रोजेक्ट मिले एक अच्छा। एंड वन मोर थिंग सदफ, अभी आप कह रही, इवन हाज ने भी यहाँ पे बोला ना कि मोहब्बत होती है। आई पर्सनली फील कि एक मैच्योर लव और एक जो टीनेज लव है ना, वो बहुत डिफरेंट होता है। 20 साल की मोहब्बत में, True. 30 साल की मोहब्बत में, 40 साल की मोहब्बत में बड़ा फर्क होता है। और ये आप अपने अंदर भी फील करते होंगे। आज से पहले 10 साल पहले वाली माया की मोहब्बत और अब वाली मोहब्बत बहुत डिफरेंट होती होगी। सो रूमी, सोनिया और फरूख, इनकी मोहब्बत मुझे लगता है बड़ी मैच्योर लव स्टोरी थी। इन तीनों की आपस में इनका कनेक्शन, ये कोई बचकाना मोहब्बतें नहीं थी। एंड देन ऑफ कोर्स जब व्हेन इट कम्स टू द कंट्री तो डिफरेंट चीजें हो जाती हैं। वो फिर वतन की मोहब्बत बड़ी ऊपर की हो जाती है। सो ये इसकी खूबसूरत बात थी जो बिछड़ गई के प्रोजेक्ट की। Mahwash, do you want to wrap up or do you want to take some more questions? Thank you, Maya. Yeah, And thank you, Thank you. थैंक Wahaj. यू सो मच, थैंक यू सो मच। I will Thank you, take Sadaf. Thank you so much. one last question from Hassan Kazmi and then we'll wrap up. Ji Hassan, please go ahead. Oh, great. He's here. Ji Hassan, you have the mic. Could you please ask what's going on? I can't hear him. Okay, something. Oh yeah, there he is. हेलो हाय। Ji Assalamu Hassan, alaikum, please go ahead. Hassan. वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? बस ठीक ठाक। मैं तो जी लिसनर पर इसलिए बैठा हुआ था कि मैं सुनूं, क्योंकि आपको पता है मेरा आई एम नॉट अ ड्रामा पर्सन, तो मैंने कुछ तना को देखा भी नहीं। आपकी वजह से बस मैंने थोड़ा बहुत देख लिया था, वरना ड्रामों के ऊपर मैं चुप ही रहता हूँ। सॉरी हसन, मुझे बेसिकली मेरी अम्मा की कॉल आ गई थी बीच में। सॉरी, आपने क्या कहा? कैन यू प्लीज स्पीक इट मैं अगेन? कह रहा था माया, जी आपको पता है मैं ड्रामे ना होने के बराबर ही देखता हूँ। जी आपकी जी ऐसे ये बिल्कुल। वाला मैंने थोड़ा सा जरूर देखा था, इसलिए मैं बहुत मेहरबानी लिसनर में हसन चुपचाप आपकी। बैठा हुआ था। मैं चुपचाप मैं भी इसीलिए बैठा सोच हुआ रही था हूँ कि मैं बोल ज्यादा क्यों ना नहीं बोलना रहे। पड़े। हाँ, बोल क्यों नहीं? जी क्या मतलब, अब कोई फिल्म आएगी, हम फिल्म करेंगे तभी आप बोलेंगे। आप हमारा काम सब देखेंगे। अब क्या करें हम इस बारे में आपने हसन? आपने आपने इशरत मेड इन चाइना का रिव्यू नहीं पढ़ा, जिस पर मुझ पे नहीं फतवे तक लगे? नहीं, आई चलें, एम सो भेजूंगा सॉरी। आपको। ओके जी, श्योर। आपको जी फतवे नहीं मावस, लगने चाहिए थे। आई होप आपने अच्छा ही लिखा हो पाकिस्तानी फिल्म के लिए। जी बस हमें तो फिल्मों का है जो कि ड्रामे वायरल होते नहीं है, पर मावस जी चूंकि मैं मावस से सुनता और पूछता रहता हूँ ड्रामों के लिए सीरियसली। माविश तो मैं ऑनेस्ट बताऊं, हमारे अगर कोई थाउजेंड्स के व्यूज थे ना, उनमें से मतलब सारे इन्हीं के थे। आई थिंक माविश जिस तरह फौरन से रिव्यू आता था, फौरन से बात आती थी, फौरन से कमेंट आता था, और
मुझे तो आदत हो गई है। महाविश अब क्या करें? संडे को आपने मुझे बस एक मैसेज किया करना है, ये है। नहीं, और आपको पता है कि मुझे ट्विटर पे भी महाविश ने ही लगाया था। ओह नाइस, ओके, गुड वर्क महाविश। नहीं, जी सीरियसली मेरे 212 फॉलोअर थे और अकाउंट ऐसे डोरमेंट पड़ा था, कभी कभार ट्वीट कर दी, तो महाविश ने इंसिस्ट कर करके मुझे एक्टिव करवाया ट्विटर पे। महाविश, इस बस नशे महाविश की से मैं जिम्मेदार हुए हैं। इसके बाद, मैं इस कॉन्वर्सेशन के बाद उनसे प्राइवेट बात करूंगी। माया आपकी आवाज कट गई। हसन, इज दैट इट? हम लोग कंक्लूड करना चाह रहे थे स्पेस। अगर आपको नहीं कोई नहीं, मैं सवाल है मैं तो वहाज सीरियसली से। मैं इसलिए लिसनर में था महाविश, कि मैं ड्रामे पे, आपको पता है मैं कमेंट, जिस चीज पे अथॉरिटी ना हो कमेंट देना नहीं चाहिए, तो मैं लिसनर में इसीलिए था कि मैं कुछ सीख लूं, तो मैं आप लोगों से सुन ठीक लूं, है, मत ओके, इसलिए। ओके। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वहाज और माया, जी, मेरे पास कुछ खास सवाल तो नहीं है। बस बाकियों की तरह मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना है मुझको बहुत ज़्यादा तहे दिल से। और मेरा ख्याल है कि आप लोगों ने जो किया है हैसम के साथ, तलहा के साथ, अदनान जाफर और पूरी जो कास्ट है, नादिया एंड एवरीवन, आई थिंक आप लोगों ने जो कमाल किया है जो पिछड़ गए में, उसके तो जो भी आपका इम्पैक्ट है वो तो आपको दिख ही रहा है। सदफ, मैं, बाकी जो आप इंस्टाग्राम पे देखते जी, हैं, ट्वीट्स, वीडियोस, वो सब देखते हैं। मुझे बस आप लोगों से ये मतलब मुझे एक सॉर्ट ऑफ रिक्वेस्ट करनी है कि आप लोग भी अपनी तरफ से कोशिश कीजिए कि इसी तरह के कुछ प्रोजेक्ट्स आप लोग भी बनाएं, क्योंकि हम लोग जैसे लोग हम तरस जाते हैं। और मैं बिल्कुल, मेरा अगर एंड ऑफ कंक्लूजन अगर सारी बात की 100 बातों की एक बात ये है कि वो वाकई मुझे नहीं लगता कि मैं कोई भी ड्रामा उस तरह पसंद कर पाऊंगी जैसे मैंने जो बिछड़ गए को पसंद किया था। क्योंकि मेरे लिए इतना, एक तो एज अ पर्सन हु वाज वेस्ट पाकिस्तानी, whose family was targeted by Mukti Bhani, so I feel like this story has a very very special place in my heart. I have so much gratitude for all of you, and I just wanted to say कि आप लोग प्लीज अपने तरफ से जितनी भी कोशिश, I know कि एक्टर के बस में कुछ नहीं होता, एक्टर बेचारे फेस I'm बन so जाते हैं। sorry, Mavish. I'm interrupting you, but Maya, are जी you able to listen, Mavish? no, Or actually this is what I was about to say. No, Mavish, can you please repeat your Mavish, your question, voice because is breaking. जी मैं रिपीट। जी, are you able to hear me now? no Mavish, no. Not really, not at all. In fact, Okay, Mavish, they okay. cannot hear you. Do you want me to take over for a minute? I think I know what you were saying. Okay. Guys, can you hear me? we can, Yes, I can. I can. Yeah, I don't yeah, know about Yeah. Maya. I Okay. can. Yeah, Yeah. Mavish, Okay. Can you hear me now? Mavish was. yeah. Now we Yes, can we hear you. can Yeah, hear Okay, Yeah, you. yeah. awesome. no. Up, go ahead. Awesome, Go awesome. ahead. मैं सिर्फ ये कहना चाह रही थी कि मेरे पास बहुत ज़्यादा कुछ कहने को नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहना जी, चाहती हूँ कि एज अ फैमिली जिसकी मुक्ति बानी ने जिनको टारगेट किया और जो बिछड़ गए हमसे और जो हमारे से अलग हुए, जो तकलीफ़ें जो हमारी फैमिली ने उठाई हैं, उनके पस मंज़र में जो आपने किया है, तो उसका आई एम डीपली 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 ग्रेटफुल। और मैं मजाक नहीं कर रही, मैं वाकई, मुझे नहीं मालूम कि मैं इस ड्रामे के बाद मैं बाकी ड्रामे कैसे रिव्यू करूंगी, मैं कैसे उनमें तो मुझे इतने सारे कीड़े दिखेंगे। और आपने इतनी नहीं नहीं। फ्लॉलेस परफॉर्मेंस दी है माया, वहाज, आपकी जो जो जिस तरीके से आपने उस वाइल्ड इंसान के अंदर का कॉन्फ्लिक्ट दिखाया है, तो आई थिंक दैट ओनली अ जीनियस कुड पुल इट ऑफ। बिकॉज क्रिकेटर्स की तरह हमारे एक्टर्स भी बहुत ही मजबूरियों में पले बड़े हैं और बहुत ही डेफिनेटली, डेफिनेटली। मुश्किल हालात में वो इस लेवल पे पहुंचे हैं। तो मेरा कोई सवाल नहीं है, मेरी बस आप लोगों से इल्तिजा यही है कि आप लोग भी अपनी हद तक जो कोशिश, आई नो कि आप लोग की इतनी कोशिश जितनी भी आप कर लें, आप उस तरह नहीं कर सकते, क्योंकि No, आप no, लोग जो honestly, बिल्कुल, you're right. I know what you're saying, and I'll be very honest. I'm sure Maya भी इस बात को सेकंड करेंगी कि मैं हमेशा से ये बात करता हूँ और भी रिसेंट टाइम्स में बहुत ज़्यादा की है कि हम पे भी एक बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हमें रिस्पॉन्सिबल फील करना चाहिए, और अपने मकसद के लिए और अपने किसी फ़ायदे के लिए किसी भी किस्म का रिस्पॉन्सिबल टॉपिक टेकअप नहीं कर सकते, किसी भी किस्म की ऐसी कोई रिस्पॉन्सिबल बात नहीं कर थैंक यू। सकते कि जिसका जो इफेक्ट है वो नेगेटिव जाए सोसाइटी पे। हम लोगों को अल्लाह ताला ने इतना प्यार दिया है, लोगों से दिलवाया है, लोगों ने इतना प्यार दिया है, तो हम पे बड़ी जिम्मेदारी है और हमें भी सोसाइटी को कुछ वापस करना है। और हम इस जिम्मेदारी को बिल्कुल महसूस करते हैं आपकी तरह। ना सिर्फ ये कि बल्कि आपके पास जो प्लेटफॉर्म्स हैं, जिस तरह के आप लोगों से उठते हैं बैठते हैं,
जैसे माया ने बड़ी अच्छी एक बात ये पहले कही थी कि आप लोग भी तो पसंद कर रहे हैं, तो मतलब ये तो नहीं कोई नहीं देख रहा है, देख तो रहे हैं लोग। जी और बिल्कुल आई थिंक हाइसम ने एक बात कही थी कि इट इज़ फॉर द ऑडियंस दैट मैटर्स, एंड दैट मेड सच एन इम्पैक्ट ऑन मी कि देयर इज एन ऑडियंस दैट मैटर्स एंड वी आर thirsty for content like that. So just to conclude, if you guys could just wrap up your experiences, what it's been like, that would be the concluding remarks from you guys, and we'd end the space. And I want to really, really thank you Sadaf, for also bringing you guys here. And I love you both. You guys are amazing. थैंक यू Talha, सो मच everyone, you थैंक guys यू are brilliant, and the show was Oof. it was a masterpiece. You know, honestly, I don't know why, but I have tears in my eyes right now because it's kind of a very emotional moment for me to finally say goodbye to Sonia, Rumi, and Talha, Captain Farooq. एंड इतना प्यार माविश, इतना प्यार। सदफ, थैंक यू सो मच। आपका भी कि आप सब लोगों ने एक बड़ा संभाल के प्यार दिया, एंड इसका क्रेडिट 100% नहीं 1000% सर हाइसम को जाता है, क्योंकि जिस तरह उन्होंने इस प्रोजेक्ट को लेके वो गए हैं। इवन तो यू नो समटाइम्स ऐसा होता है कि हम लोग फील कर रहे होते हैं एज एन एक्टर कि ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए या हम ऐसा अपना कैरेक्टर बनाए थे, लेकिन वो पूरे आर्क जो होती है ना प्रोजेक्ट की, वो डायरेक्टर को पता होती है more than any artist. तो मुझे ये लगता है कि हम लोग को जितना आप लोगों ने प्यार दिया है, जितना आप लोग दे रहे हैं, इसका क्रेडिट उनको जाएगा, ऑफ कोर्स उनको जाएगा। सो थैंक यू सो मच। आई विश कि आगे प्रोजेक्ट्स हमें कुछ इस तरह के मिले, कुछ प्रोडक्शन हाउसेस, कुछ प्रोड्यूसर्स, राइटर्स इससे कुछ सीख सकें और हम लोग अपने मुल्क में एक अच्छी चीज़ बना सकें, और बना सकते हैं। अगर आप लोगों ने कमेंट्स पढ़े होंगे जिस पे लिखा हुआ था स्पेसिफिक कि नेटफ्लिक्स सीजन या नेटफ्लिक्स की तरह का प्रोजेक्ट, तो इसका मतलब है कि हम लोगों के अंदर है, सब कुछ है, एक्टर्स भी हैं, कंटेंट भी है, स्क्रिप्ट भी है, सब कुछ है, बस बनाने की देर है। आई होप कि आप लोग कभी कोई मैसेज देंगे, कुछ लिखेंगे तो आप लोगों को लोग फॉलो करते हैं और वो सीख जाएं इस चीज से। I think that's something that we probably forgot to point out. You know, excitement मुझे बहुत ही वही वहाँ जे के रसमलाई से मिल रही हूँ, माया से मिल रही हूँ, तला से. So I totally forgot. I needed to say something about that production. सोचो shoestring production है, and yet we managed to think it was Bangladesh. You guys didn't have a huge budget, and yet वो scenes ऐसे लग रहे हैं जंग के scenes हैं. I think Haisam deserves full credit for that in the way he's picturized everything. डेफिनेटली So that was तो amazing. हाइसम को मेरी तरफ से ऑस्कर, नोबेल, बाफ्टा, टोनी, ग्रैमी सब दे देना चाहिए। मैं बस ऑर्डर दे दिया मैंने महाविश आपकी मैसेज से पहले। बस पहुंचने वाले हैं ये आप ऑनेस्टली मतलब अब इतने सालों के बाद सर हाइसम के साथ काम करना, और क्या मैं कहूँ यार, मेरे पास लफ्ज नहीं है। वहाज प्लीज कंटिन्यू, प्लीज यू शुड से समथिंग। Thank you या so much. वहाज, you've been silent. नो, मैं आई थिंक आप लोगों ने सारी बातें कर ली हैं। और रूमी मेरे लिए, ये कहानी मेरे लिए, ये प्रोजेक्ट मेरे लिए बड़ा एक इम्पोर्टेंट रहा है। और आई मीन थोड़ा सा इमोशनल भी हो गया था मैं ये सब ओह जब आप लोग नो, बातें कर रहे थे। ओह नो, दिस इज सो स्वीट। नो मैंने कहा तुम एक्चुअली सब दिस लोग इज इतना वेरी रोए तो मैं अब इमोशनल रो फॉर लेता। अस। नो एक्चुअली I think it's emotional for everyone. I think that's या the power. You know, या ये एंड आई इसकी थिंक इसकी दिस ये वाज दिखाता है कि ये कितनी पावरफुल कहानी थी। बिल्कुल पावरफुल थी। और देखें, कभी भी इस पॉइंट इस तरह से बात नहीं की गई। अगर थोड़ा सा बिगर पर्सपेक्टिव में देखें तो हम लोगों की तरफ से पहली दफ़ा कोई मौक़िफ़ गया है, और हम लोगों की ख्वाहिश यही थी, और हम लोगों ने यही चाहा था कि बिल्कुल एक प्यार भरा पैगाम जाए। और डेफिनेटली सब कुछ इतना बुरा हुआ, कोई भी नहीं चाहता था कि ऐसा हो। और वट एवर इट इज़, लेकिन रूमी की तरफ से अब एंडिंग नोट मेरे ख्याल में, मुझे तो एक फैज़ साहब का जो एक शेर है बड़ा वो मोहब्बत पे है ये आपने जो कि किताब रखी हुई है ना फैज साहब की अपने पास, तो निकाल के जो पढ़ रहे याद हो हैं। गई है मुझे। याद हो गई है मुझे, लेकिन शायद मैंने पहले भी एक कोट किया था, लेकिन रूमी के लिए क्योंकि डेफिनेटली जो उसका एंड है वो लोगों को शायद नहीं उस तरह से समझ में आ रहा है, या मुझे भी फीडबैक आ रहा है। लेकिन आई जस्ट वांट टू से अकॉर्डिंग टू फैज साहब के तगफ्फुल के आगोश में सो रहे हैं तुम्हारे सितम और मेरी वफाएं, मगर मेरी फिर भी है वफाएं। मेरे मासूम कातिल, तुम्हें प्यार करती हैं मेरी दुआएं। तो जो कुछ भी हुआ, वाह, जैसा भी हुआ, प्यार हमेशा, प्यार और मोहब्बत जिंदा रहना चाहिए, और वो रहेगा हमारी तरफ से भी। और हम सबका यही और मोटिव होना चाहिए कि सब एक साथ मिलकर जिएं और एक बेहतर जिंदगी गुजारें और खुश रहें।
Yeah. Beautifully, absolutely beautifully said. मेरा नहीं ख्याल कि इसके बाद कोई बात की गुंजाइश रहती है। फैज साहब ने कह दिया और मेरा ख्याल है कि जो 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 कुछ हुआ है अब टू जस्ट पुट अ ह्यूमरस नोट टू इट, आई थिंक नबील कुरैशी की फिल्म में भी ये बात की थी कि सुन सुन के सारा झगड़ा हमारा, अब तो दुनिया भी हो गई है बोर। तो ये जो हमारे झगड़े हैं और ये सारी चीज़ें जिनको आज मैं यही बात आई थिंक जब हमने स्पेस शुरू की थी तो इसी पर्सपेक्टिव से, इसी मंजरनामे में ये बात हो रही थी कि रशिया में, यूक्रेन में जो भी हो रहा है, जी ये भी इनकी भी अपनी एक टाइज हैं जो कि बिछड़ गए हैं बिल्कुल। वो भी। और इस तरह के टाइज ही होते हैं जब इतने विशेष हो जाते हैं। तो आई एंड थिंक I'll द be मैसेज honest, ऑफ माविश, मैंने इतने इतने सारे बंगालियों से कोऑर्डिनेट किया ड्यूरिंग दिस प्रोजेक्ट, निशत, अदर लॉट ऑफ पीपल। मैंने कभी भी फील ही नहीं किया कि ये लोग हमसे अलग हैं या किसी भी किस्म की कोई ऐसी बात है कि जो डिस्टेंस है, मुझे फील ही नहीं हुआ। और आपके सामने रिजल्ट है। नहीं बिल्कुल, और कोई ना कोई मोहब्बत की तार थी जो जुड़ी हुई थी, बिल्कुल जो कि बिल्कुल टूटी, और ज़ाहिर है जब भी तकलीफ हुई तो तकलीफ तो किसी करीब के रिश्ते से ही टूटने से होती है, वरना तो कोई दूर बैठा अलग हो भी जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है। बिल्कुल। आई थिंक कि आप लोगों को बहुत डिज़र्व करते हैं आप लोग क्रेडिट, बिकॉज़ माया और वहाज आप लोग दोनों अपने करियर के उस मौके पे हैं कि आप लोगों को इस तरह का प्रोजेक्ट चूज़ करना भी एक रिस्क ही होता है। ये मैं नहीं कह रही कि हाइसम को आप डाउट करते हैं, लेकिन एक रिस्क होता है। आप अपनी बहुत सारे शायद लुक्रेटिव प्रोजेक्ट्स को हटा के आप इस तरह का प्रोजेक्ट चूज़ करते हैं because of the I suppose, and I hope that's the feeling of responsibility for telling the story like this. So I feel really emotional. I'm so thankful to you both. Thank you. I think there is no other word Thank for you, it. Thank you Just so Mavish. thank much. Yeah, you. Thank you so much. Thank you so much. I'm And I speechless right now. Thank you so Same much. here. And you know, that's what used to happen every time I used to finish watching an episode, and I used to sit and I was like, मैं क्या बोलूं, मैं क्या लिखूं? हर frame उस show का, हर frame, हर episode का is a class apart, and I'm just हाइसम साहब से आप जब भी मिलें तो उनको हमारी बहुत 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 प्यार और जरूर बहुत बहुत जरूर Yeah, जरूर definitely. जरूर। Thank you so you much. guys were the voice लोगों की आवाज जो हमने नहीं सुनी, those people who were the victims and probably ignored, you guys became their voice. तो yeah, ये बहुत बड़ी बात है, वो उनकी pain and suffering also बिल्कुल needed to ठीक be. बात है, बिल्कुल। जी Okay, thank you so much. thank you Thank you so so Thank you much, much. माया, Sadaf. Thank you, thank you Mavish. वहाज, Thank you थैंक for यू having सदफ। us. आप Thank सबका बहुत शुक्रिया। माया वहाज, अगर आप कुछ और कहना चाहें No तो no द फ्लोर इज ऑल no योर्स। no, No, सब कुछ कह चुके honestly, हैं I'll start हम। crying. Honestly, I'll start crying. Oh my God. I am thankful to you. I'm thankful to everyone who joined me in this space. I'm thankful to everyone who watched जो बिछड़ गए. I'm personally thankful, though यकीन करें मुझे ना माया ने पैसे दिए हैं, ना वहाज ने पैसे दिए हैं, ना हाइसम ने पैसे दिए हैं, ना जियो ने पैसे दिए हैं। अल्लाह की कसम मुझे किसी ने पैसे नहीं दिए, ना सदफ को पैसे दिए। इस बात की भी मैं गवाह हूँ। I just hope कि जिन लोगों ने ये ड्रामा नहीं देखा वो ये ड्रामा देखें। 14 की 14 एपिसोड जो हैं वो यूट्यूब पे मौजूद हैं, आई बिलीव 14 हैं। जी एंड माया और वहाज क्लास अपार्ट एक्टर्स हैं। जो कोई अगर ऐसा कोई शख्स बैठा है जो सब स्पेस में सुन रहा है, जो जानता है कि, और जो इस तरह की पहले कभी किसी ने उसने ओपिनियन रखी हो कि नेटफ्लिक्स, अमेजोन तो हमें लिफ्ट नहीं कराते या हमसे बात नहीं करना चाहते, तो उनके लिए ये एक सलाह आम है याराने नुक्तादां के वाह वाह लिए वाह, कि क्या ऐसा बात कुछ नहीं है। क्या बात। आदाब, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा जो कंटेंट है वो बहुत कमाल का है, बिल्कुल। हमारे एक्टर्स बहुत कमाल के हैं। तो बस एक मौका और। बहुत शुक्रिया बिल्कुल जनाब, बहुत शुक्रिया सबका। अल्लाह आपको खुश रखे और अल्लाह करे जोर कलम और भी ज़्यादा, और हम इसी तरह आपको हमेशा कीप मेकिंग पाकिस्तान प्राउड। thank you ठीक है, Sadaf. पाकिस्तान Thank you जिंदाबाद। thank you थैंक यू, Mavish. ठीक है। Okay जी, पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत bye. शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़ एवरीवन, हैव अ लवली इवनिंग। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।